Hello everyone, welcome to all of you on this YouTube channel, Saurabh Goswami, History Optional for UPSC. And today we are going to discuss previous year question solution for History Optional Paper 2, that is Modern Indian History. Basically we are going to discuss Section A, Modern Indian History for the year 2021. So let's start the discussion, but before this let me remind you once again that the format of these discussions is for discussing 1 year paper. I used to make 4 videos and this is part A, okay, of the video. So in 2021 PYQ for Modern India, there will be 4 videos, and today we are going to discuss part A of the video, where we will discuss question number 1, and there are 5 components of this question. Question number A, B, C, D, E, all are the 10 marker questions. So today we will discuss these 5 questions in our class, and for the remaining part of the paper there will be part B, part C and part D videos. So watch the videos accordingly. Now since today we are going to discuss question number A, 1B, A, B, C, D, E. So first let's look at the question. You all know the pattern of the question. Paper 2 is divided into 2 sections. Paper 2 is divided into 2 sections. So section A and section B. Section A is Modern Indian History and section B is Modern World History. When we talk about section A, so there are total 4 questions in section A, and in the same way there are 4 questions in section B also. So here we are discussing section A, and the format is that question number 1 and question number 5 of section A and section 2 is compulsory. It means that today we are going to discuss compulsory question. Here it has been written that there are 10 questions divided into 2 sections, and question number 1 and 5 are compulsory. So here question number 1 in Modern Indian History is compulsory that we are going to discuss, and here there are total 5 questions, components of this question. All these are the 10 marker question where you are asked to critically examine a statement, and in remaining part you will find that question number 2 will have 3 questions, question number 3 will also have 3 questions, 4 will also have 3 questions. So this is the format. So 1 and 5 are compulsory, and you are given option in exam that total you will have to attempt 5 questions where 1 and 5 are compulsory. It means that if you have attempted compulsory question, now there are remaining 3 questions. So you can choose 3 questions out of these remaining 6 questions. It means there are remaining how many questions? 6 questions, 3 in paper A and 3 in paper B. So from 6 you can choose 3 questions, but you will have to attempt minimum 1 from 1 section. ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एक सेक्शन से तीनों कर लोगे, नहीं, आपको करना क्या होगा, either you will attempt 2 from this section, 1 from this section, or you can attempt 2 from world history and 1 from modern Indian history. So there are always choices, and that's why the paper is not difficult, since here in discussion we will discuss each and every question, but in exam you have the options to select the questions, okay, but here there are no choices while writing question number 1 and question number 5. So this is question number 1. So we will discuss question number 1 only. First we will do, it is very much important, identification of themes, okay. Second, we will try to decode the essence or meaning of the question. We will deconstruct the question, the components of the question. Third part, we will do what? Theme analysis of that question. Fourth part, we will discuss 2 model answer for each question. In model answer A, we will choose comprehensive format to write the answer. In model answer 2, we will choose bullet format or point wise format to write the answer, and in this way we will complete the discussion. So this will be a complete discussion along with the theme analysis. So these are 5 questions. So the question number 1 is saying that
the introduction of, you can download the papers from UPSC website. Okay, you can search UPSC history question paper 2021 and you will find it has already been uploaded on the UPSC website. So you can download original papers from the website. And it is better, whenever you are reading, you must have the original papers for the last 5 to 10 years. Okay, because this will psychologically prepare you for the exam, right? Because here you will see that there is Hindi and English version of the question, but when I will bring only English, you can say that only English questions. So here Hindi sometimes helps us also if we know Hindi. Okay, so it is better to prepare yourself, prepare your mind for the examination, and for that it is very essential to read the original papers. Okay, now question number 1 is related, the question number, all these questions you will have to do what? Critically examine. You all know last year question I have already discussed, so now I think that you all have some basic ideas. And question 1 is saying that the introduction of Western education transformed India in unforeseen ways. So first, theme identification. The question is talking about growth and development of education system in India, where the question is focusing on the development of Western education. We all know there is a topic, growth and development of nationalism in India. So in growth and development of nationalism, how education contributed, how Western education contributed, this we need to, okay, understand while writing the answer of this question. But there is a historical debate also that is related with this theme, that Western education, okay, introduced those consequences in India that were unintended. It means that British authorities were not desiring, they were not intending that Western education will come and support the growth and development of nationalism in India, but it happened. This is unintended consequence of the development of Western education. So while writing answer of this question, the most important thing is historical insights. Okay, for general studies also you can write the answer of this question in simple way, but while writing history optional you must include historical insights, otherwise your answer will be incomplete. Now question number 2 is related to the theme that the Tipu Sultan. So we all know that Tipu Sultan, Mysore state is an important topic. Okay, whenever we read modern India in 18th century, and while reading India in 18th century, we read one topic, and that is rise of regional states in India. So while reading rise of regional states, we read about the rise of Mysore state under Hyder and Tipu Sultan. Plus at the same time the question is saying that Tipu Sultan had little success or partial success in setting forth a course of change. Okay, यानी टीपू सुल्तान एक बदलाव लाना चाहता था और उसमें उसको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, बहुत आंशिक सफलता मिली. That is significantly different from the general experience of the 18th century crisis of Indian politics and society, where public life tended over and over to become a system of plundering. तो एक तरफ इसने 18th century के क्राइसिस के बारे में इस क्वेश्चन में बताया कि 18th सेंचुरी में जो जनरल एक्सपीरियंस था, लोगों का सामान्य अनुभव था, वो क्या था? क्राइसिस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी. भारतीय समाज और भारतीय राजनीति जो है इसके क्राइसिस की बात की जा रही है, संकट की बात कर रही है कि कुछ संकटों से गुजर रहा था और जो स्टेट सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, वो एक तरह से धीरे धीरे बार बार उसमें एक रिपीटेशन की ट्रेंड देखी जा रही थी और वो धीरे धीरे एक सिस्टम ऑफ प्लंडरिंग का रूप ले चुका था. तो इसमें बदलाव लाने की टीपू सुल्तान ने कोशिश की, बट उसमें उसको ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी. ये स्टेटमेंट पूरी तरह से एक स्कूल ऑफ हिस्ट्री के थॉट से इंस्पायर है, आगे मैं बताऊंगा. तो इसको लिखने के लिए, ठीक है, हमें बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा. हालांकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है. क्वेश्चन इज सेइंग इन हिंदी, इट इज सेइंग दैट 18वीं सदी की भारतीय राजनीति और समाज के संकट के सामान्य अनुभव, जहां जनजीवन बार बार लूटपाट की व्यवस्था का शिकार होता था, इससे अलग बदलाव लाने की व्यवस्था टीपू सुल्तान ने की, लेकिन उसमें उसको बहुत ही कम सफलता मिली. क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो हमें ये बात तो समझनी होगी ना कि 18th सेंचुरी क्राइसिस में वो जनरल एक्सपीरियंस क्या था, जहां पे जो हमारा
समाज है, जनजीवन है, बार बार लूटपाट की व्यवस्था का शिकार होता था। तो वो कैसी व्यवस्था थी, क्यों समाज लूटपाट की व्यवस्था का शिकार होता था, टीपू ने कैसे इसमें चेंजेस लाने की कोशिश की और इसको पूरी सफलता क्यों नहीं मिली? सो दिस ऑल वी हैव टू आंसर इन दिस क्वेश्चन. So it is clear. Now question number 3 is saying that critically examine the Vernacular Press Act of 1878 was designed for better control of vernacular press. Vernacular press means दो रीजनल लैंग्वेजेस या लोकल लैंग्वेजेस के जो प्रेस है उनको हम वर्नाक्यूलर कहते हैं, देशी भाषाएं, राइट. एंड टू एम्पावर द गवर्नमेंट विथ मोर इफेक्टिव मीन्स ऑफ पनिशिंग एंड रिप्रेसिंग सेडिशियस राइटिंग्स. यानी वीपीए 1878, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के आने से ये डिजाइन ही किया गया था कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस है, स्थानीय भाषाओं में जो भी लिखा जा रहा है अखबारों में, उस पर कैसे सरकार अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रण स्थापित कर सके. और जो सीडीसीएस राइटिंग्स है, यहाँ पे सीडीशियस राइटिंग्स का मतलब है कि औपनिवेशिक सरकार, कॉलोनियल गवर्नमेंट, अंग्रेजों के खिलाफ हम जो लिख रहे हैं अपनी स्थानीय या देशी भाषाओं में, उन पर रोक लगा के नेशनलिज्म को मतलब कर्ब किया जा सके. सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस. बट यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों को समझना है थीम में. पहली चीज क्या है, वन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म टुक प्लेस इन इंडिया. भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ. अच्छा, जब राष्ट्रवाद का विकास होगा, अलग अलग रूपों में राष्ट्रवाद का विकास होगा, तो औपनिवेशिक सरकार को स्वाभाविक सी बात है, ये बात अच्छी नहीं लगेगी राष्ट्रवाद का विकास. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, इसको कर्ब करने की, रोकने की कोशिश करेगी. गवर्नमेंट विल ट्राई टू कर्ब दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म. गॉट इट. और सरकार जब इसको रोक लगाने की कोशिश करेगी तो इसके लिए, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा लेटन, और लेटन के टाइम में ये जो सप्रेशन था ये अपने पीक पे पहुंच चुका था. तो लिटन ने ऐसे बहुत सारे प्रयास किए. उन्हीं प्रयासों में से एक है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878. आगे चलकर रिपन के टाइम में 1882 में इसे रिपील भी कर दिया गया, निरसित भी कर दिया गया. तो यहाँ पे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आप समझते हो तो इजीली 150 वर्ड्स में अपने आंसर को आप प्रेजेंट कर सकते हो. तो बैकग्राउंड थीम जानना बहुत जरूरी है. तो जो हमारी फाउंडेशन क्लासेस होती हैं हिस्ट्री ऑप्शनल की, वहां यही तो हम पढ़ते हैं, बैकग्राउंड थीम, एक एक चीजों के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं. तो PYQ discussion is what the practical application of whatever you have studied in your classes. So without a good PYQ discussion, your preparation always remains incomplete. हमेशा याद रखना कि क्लास के साथ साथ PYQ डिस्कशन भी बहुत ज़रूरी है. हम क्लास के साथ साथ we directly jump to the answer writing part. That is good. But क्लास में उतना नहीं हो पाता है. अगर मैं भी पढ़ाऊँ ऑप्शनल तो शायद 120 क्लासेस में एक एक बात को बहुत इन डिटेल माइन्यूट एनालिसिस शायद न कर पाऊँ. तो PYQ हैज़ बीन डिजाइन्ड इन सच अ मैनर कि दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करें. द डिस्कशंस इन द क्लासेस प्लस PYQs, सो बोथ विल कम्प्लीमेंट ईच अदर. एंड इन दिस वे योर थॉट प्रोसेस, योर आइडियाज विल बिकम मच बेटर. जहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा लिख पाओगे, तो फिर आंसर राइटिंग मेक्स यू एक्सेलेंट. ओके, तो सीधे क्या करना है, देयर आर 3 स्टेजेस. फर्स्ट इज फाउंडेशन क्लासेस, द सेकंड इज गुड PYQ discussion, and the third is answer writing. So don't jump directly to the third part. Okay, you can do while PYQ discussion, you can practice writing answer. That will be a better thing. Simultaneous चले तो ज़्यादा अच्छा है. तो ये बात आप समझ गए. Now the fourth theme is related to, it is saying that critically examine the rise of communist movement in India in 1920s. यानी 1920s में जो भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट, कम्युनिस्ट आंदोलन का विकास हुआ, लेंट अ मिलिटेंट एंड रिवोल्यूशनरी कंटेंट टू द ट्रेड यूनियन मूवमेंट. यानी कि भारत में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई 1920s में, हिंदी में कह रहा है कि 1920 के दशक में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के उदय ने ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक उग्रवादी और क्रांतिकारी सामग्री प्रदान की. तो इसमें आपको बहुत बेटर समझना होना चाहिए, समझ होनी चाहिए ट्रेड यूनियनिज्म क्या है, प्लस कम्युनिस्ट मूवमेंट का डेवलपमेंट क्या है. अच्छा, ट्रेड यूनियनिज्म और कम्युनिस्ट मूवमेंट, जैसे एटक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. सो इन एटक यू विल सी दैट देयर वाज द डोमिनेंस ऑफ मॉडरेट लीडर्स इन एटक ऑल्सो. ठीक है, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट वो थे. ये भी एक अलग तरह की चीज आपको दिखेगी कि बहुत रेडिकल नहीं है वो. दे आर कम्युनिस्ट लीडर्स बट दे आर मॉडरेट कम्युनिस्ट लीडर्स.
यानी कि वो जब बात करेंगे, डिमांड करेंगे, तो वो कहेंगे कि जो फैक्ट्रीज है वहाँ पे श्रमिकों की सैलरी बढ़ा दी जाए या जो भी लेबर रिफॉर्म्स हैं ये सब इंट्रोड्यूस किया जाए, ऐसी बात करते थे। बट जैसे ही एटक के आगे हम बढ़ते हैं, जैसे कम्युनिस्ट सीपीआई आती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या एचआरए आता है, या एचएसआरए आता है, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे यहाँ पे जो पॉलिटिकल डिमांड्स हैं, यहाँ पे आते आते उन डिमांड्स का नेचर चेंज होने लगता है, ये ज्यादा रेडिकल हो, इट बिकम मोर रेडिकल। तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, सो यू कैन इजिली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट ये आप कैसे समझोगे? अगर आप ट्रेड यूनियन आपने पढ़ा है अपनी क्लासेस में, या फिर कम्युनिस्ट मूवमेंट पढ़ा है, और ऑप्शनल के नाम पे आपने कुछ एक फैक्ट्स का एक पिटारा तैयार कर लिया है, तो क्या आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। स्टेट पीसीएस में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सबसे जरूरी चीज है। आप वहां देखिए, ठीक है, जो किसी भी मुद्दे का सबसे कोर और एसेंस है, वहां पे आपकी नजर जानी चाहिए, ये सबसे खास बात है। और यूपीएससी क्वेश्चन भी फ्रेम वहीं से करती है। यहाँ पे जो बात मैंने बताया, ये बहुत ही एक माइन्यूट डिफरेंस है, जो आमतौर पे लोग पढ़ते पढ़ाते वक्त मिस कर जाते हैं, ये बताते ही नहीं कि वहां पे कैसे रेडिकल होता चला गया डिमांड। और दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट पार्ट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, the atmosphere was ripe for the emergence of revolutionary groups to fill up the vacant space in the political map of the country। यानी 20th century के पहले दशक में जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स हैं, है ना, तो मतलब जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड है, यानी फर्स्ट डिकेड का मतलब ये हो गया, ये वाला टाइम 1900 टू 1910, ठीक है, यही हो गया 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड। यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर था, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था, वो बिल्कुल उपयुक्त था, राइप था, जिसमें कि एमरजेंस ऑफ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स, जो क्रांतिकारी समूह हैं, इनका उदय हो सके, है ना, ये चीजें हैं। टू फिल अप द वैकेंट स्पेस ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द कंट्री, यानी इंडिया के पॉलिटिकल मैप में एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गया था, और वहां पे ये चीज बड़ी ही जरूरी हो गई थी। तो अगर आप 1900 से 1910 के बीच में डेवलपमेंट से फैमिलियर हो, जैसे आपको पता होगा मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट स्वदेशी मूवमेंट, सूरत स्प्लिट, ओके, आफ्टर दिस एक्सट्रीमिस्ट separation, British using carrot and stick policy, इसके बाद first phase of revolutionary activities started. So if you are familiar with these background informations, you can easily write the answer of this question. So now we are going to discuss all the 5 questions along with the theme analysis and the answer, okay, but I will take 2 minutes break here, okay. So we'll start with question number 1, A B C D E, okay, right. This is the first question that we are going to discuss. So I will take 2-minute break because I have to call someone, okay, so give me 2 minutes break.
Sorry for interruption. Okay, let's start. So here what I was saying, the first question was the introduction of Western education transformed India in unforeseen ways. The introduction of Western education had transformed India in unforeseen ways. So first we will do a theme analysis so that you could have an idea or you could revise whatever you have studied in your classes. Then we'll write the answer. So first, here we have to critically examine. So it is very important to know the themes in details. Okay. So here it is talking about Western education. That is the most important part, and introduction of Western education. So have you read about the background of the introduction of Western education? Background for the introduction of Western education. क्या आपने पढ़ा है इसका background? I hope that each and every one of you is familiar with the background of development of Western education in India. Western education, here the question is not referring about Macaulay's minute. It is a very famous question of prelims also, Macaulay's minute. Okay. So what is Macaulay's minute? We all know that, acha dekho, in some basic things that you must have studied. You also have studied about Orientalist and Anglicist controversy. Okay, got it? So Charter Act of 1839, there was a provision that 1 lakh rupees per year will be given for the promotion of education. But the fund was not released for the, you can say, next 20 years. And finally, when the fund was released, there was an important debate that how this fund will be spent. Will it be spent for the promotion of Oriental languages like Sanskrit, Persian, or traditional education that is being promoted in India, or we should spend this money for the promotion of, okay, you can say Western education, modern education. It means the education that could promote science, rationalism, liberal thoughts. Okay, so there was an important debate, Anglicist versus Orientalist controversy. Orientalists supported the promotion of Sanskrit language, Persian language learning. Anglicists supported the promotion of Western language, English, okay, and all this. So here Macaulay, when we talk about Macaulay, so Macaulay was the person who advocated in a very strong manner for the promotion of English as a medium of instruction in India. कि हिंदुस्तान में लोगों को शिक्षा जो दी जानी चाहिए, उसमें जो माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इंग्लिश होना चाहिए. और साथ ही साथ मैकॉले एक रेसिस्ट भी था, बिकॉज मैकॉले outwardly rejected Indian traditional knowledge system, and he was considering that the Western knowledge, Western education, Western science, English language, it is superior. तो देखो ये नस्लवादी भी था, क्योंकि इसने सिरे से खारिज कर दिया इंडियन लैंग्वेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम और ट्रेडिशन को, और साथ ही साथ ये मानता था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, इंग्लिश लैंग्वेज है, दिस इज सुपीरियर. एंड मैकॉले वाज आल्सो हैविंग अ ड्रीम that in India we will create a class of Indian people itself who will be Indian in blood and color, but they will be English in taste, morals and intellect. ये खुद मैकाले इस बात में विश्वास करता था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को और एजुकेशन को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि हम इंडियंस का, हिंदुस्तानियों का एक ऐसा वर्ग तैयार करेंगे जो दिखने में तो हिंदुस्तानी होगा, बाय ब्लड वो हिंदुस्तानी होगा, बट उसका जो भी टेस्ट है, ओपिनियन है, मोरल है, इंटेलेक्ट है, मतलब उसका पूरा का पूरा हम उसको अंग्रेज बना देंगे. यानी हिंदुस्तानी जो बिल्कुल अंग्रेज की तरह बिहेव करता हो, उसकी जो कंज्यूमर चॉइसेस हों, कंज्यूमर बिहेवियर जो जिसको हम कहते हैं, वो बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसी हो. जो इंग्लिश कस्टम्स हैं, इंग्लिश यूनिफॉर्म्स हैं, इंग्लिश रिचुअल्स हैं, उनको फॉलो करना, इंग्लिश स्टाइल को फॉलो करना, उसको वो प्राइड और ग्लोरी समझने लगेगा, और इस तरह से उसका कल्चरल एलिनेशन भी हो जाएगा दूसरे इंडियंस के साथ. और ये जो नया क्लास तैयार होगा,
ये क्लास इंडिया में कॉलोनियल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा और वो ब्रिटिश को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंग्लैंड की जनसंख्या भी बहुत कम थी. सो दैट वाज द बेसिक प्लान. So finally, by Macaulay's Minute, it was established that English will be promoted as a medium of instruction. और साथ ही साथ वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी भी आपने पढ़ा होगा, अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, जिसमें माना गया कि हम जो टॉप लेवल पे जो है लोगों को एजुकेट करेंगे, शहरों में बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खोलेंगे और धीरे धीरे इसका बेनिफिट कहाँ तक पहुंचेगा, लोअर लेवल तक डाउनवर्ड पहुंचेगा. इट मीन्स हमारा फोकस क्या होना चाहिए, यहाँ पे बॉटम्स अप अप्रोच नहीं है जो कि हमारी डेमोक्रेसी में है. आज हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बॉटम्स अप अप्रोच की बात करता है. जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग रहते हैं उनको पहली प्रायोरिटी देने की बात करता है. बट इंग्लिश सिस्टम में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी अपनाया गया. दे अडॉप्टेड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दैट वी विल गिव एजुकेशन टू अ स्मॉल एलीट. वी विल प्रोमोट एजुकेशन फर्स्ट in the urban areas, and then the benefits of this education will ultimately reach to the masses. तो इस तरह का एक मॉडल लेके आए. ये सारी चीजें हैं. तो इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन के प्रोमोशन से जुड़े हुए ये इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं. अब आपको ये समझना है कि जैसे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये एक तरह का कल्चरल इंपीरियलिज्म है. ये कोशिश जो कि दिस effort which was done by British Macaulay, it was a kind of cultural imperialism. बट जब नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस इस बात को देखते हैं तो वो ये कहते हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस का यह थॉट है कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन का जो प्रमोशन हुआ, इस वेस्टर्न एजुकेशन के प्रमोशन ने इंडिया में लिबरल आइडियाज को प्रमोट किया. उन लिबरल आइडियाज के प्रमोशन से लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस हुआ, राजनीतिक जागरूकता हुई. उस वेस्टर्न एजुकेशन के प्रमोशन से लोगों को वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ने का मौका मिला. उस वेस्टर्न एजुकेशन के प्रमोशन से लोगों को ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो डेवलपमेंट्स थे, जो रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, उन रिवॉल्यूशंस के बारे में जानने और समझने का मौका मिला. सो दिस विल रेज द लेवल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ इंडियन मासेस. इससे हिंदुस्तानी लोगों की, आम हिंदुस्तानियों की जागरूकता का स्तर बढ़ेगा, और जब ये जागरूकता का स्तर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली it will promote sense of nationalism among Indian people. ये सेंस ऑफ नेशनलिज्म को प्रमोट करेगा. साथ ही साथ जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है, इसके खिलाफ भी हमारा एक क्रिटिकल आउटलुक और थॉट प्रमोट हो पाएगा. तो देखो, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जैसे बिपान चंद्रा की बात अगर आप करोगे तो वो इस बात को सपोर्ट करते हैं. बिपान चंद्रा का मानना है कि जो प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन है, इससे क्या हुआ, लिबरल आइडियाज, ठीक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर. द इंडियन पीपल बिकम फैमिलियर विथ रिवॉल्यूशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड. द इंडियन पीपल became familiar with Western literature, Western science. So ultimately, this will make them politically aware, and this political awareness will promote the growth and development of nationalism in India, and at the same time, it will also expose the hollowness of colonial administration. It will also expose the weaknesses of colonial administration. This will happen. So this is the idea of Bipan Chandra. But Marxist historian says that the development of Western education in India was a kind of promotion of cultural imperialism in India. इनका ये मानना है. तो इस तरह के हिस्टोरिकल डिबेट्स भी हैं. अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है, जब लोग शिक्षित होंगे, वेस्टर्न एजुकेशन, ये जो नेशनलिस्ट थॉट है, ये है तो लॉजिकल है, इससे डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म होगा. बट वॉज इट इंटेंडेड बाई द कॉलोनियल अथॉरिटीज? क्या कॉलोनियल अथॉरिटीज ऐसा ही चाहते थे कि मैं कॉलेज चाहता था क्या कि मैं वेस्टर्न एजुकेशन लेके आऊं और हिंदुस्तान के लोगों का पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़े और वो अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने की बात करने लगे? मैं कॉलेज ऐसा कभी नहीं चाहता था. इट मीन्स दैट द कॉन्सिक्वेंसेस which were generated by promotion of Western education in India was never intended by colonial authorities. Which consequences was not intended by colonial authorities? So the consequences in the form of growth and development of nationalism. India में nationalism का जो growth and development हुआ, ये कभी वो नहीं चाहते थे. मेरी बात समझ गए? बट हुआ. तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन का अप्रोच यही है कि वेस्टर्न एजुकेशन क्या कर रहा है,
It is helping in the promotion of nationalism, growth of nationalism, emergence of nationalism. But Marxist historian ने एक तो बात ये कही कि ये क्या है, एक तरह से कल्चरल इंपेरियलिज्म का ही एक तरीका है. क्यों कल्चरल इंपेरियलिज्म कहा? मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने, समझो. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन सेज दैट डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, जो भारत में वेस्टर्न एजुकेशन या पश्चिमी शिक्षा का विकास किया गया, इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन और इंग्लिश मॉडल या वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसने क्या किया इंडिया में? इट क्रिएटेड अ न्यू मिडिल क्लास. इसने इंडिया में क्या क्रिएट कर दिया? अ न्यू मिडिल क्लास. It created in India a new middle class, and this class it was having consciousness that was different from the consciousness of, जैसे यहाँ पे जो newly educated, newly English educated elite class है, प्लस इंडिया में जो कॉमन इंडियंस हैं, कॉमनर्स हैं, इनकी जो कंसिस्टेंस थी और इनकी जो कंसिस्टेंस थी, दोनों में फर्क आ गया. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने कहा कि दिस न्यूली एजुकेटेड इंडियन एलीट क्लास वाज हैविंग अ कॉन्शियसनेस दैट वाज इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द कॉन्शियसनेस ऑफ द कॉमन मासेस. इनकी भी बात गलत नहीं है. आज के टाइम में भी लोग ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, तो अपने साथ वालों को हकारत भरी नजरों से देखने लगते हैं. कुछ यही कहना चाहते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस. ठीक है, कि सूट बूट पहना, इंग्लिश बोलना सीख गए, फिर आप उसी भाव में आ गए कि मैं तो साहब बन गया, है ना, और दूसरे इंडियंस को आप दूसरे भाव से देखने लगे. तो ये भी बात कुछ हद तक सही है. दिस इज ऑल्सो ट्रू टू सम एक्सटेंट, है ना. जब सबल्टन बात करेंगे, व्हेन सबल्टन विल टॉक अबाउट दिस इशू, दे विल से दैट द इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट वाज प्रोमोटेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, वेस्टर्न एजुकेशन, इट वाज हैविंग लिमिटेड रीच. ये केवल कुछ लिमिटेड क्लास को एड्रेस करता था. मासेस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस एजुकेशन. बहुत बड़ी संख्या में लोगों को यह शिक्षा मिले ही नहीं. तो सबल्टन तो फ्रॉम बिलो, ग्रास रूट लेवल के लोगों की बात करता है. तो पीजेंट वर्कर जो मतलब एकदम ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, कहा इनको कहाँ फायदा मिला वेस्टर्न एजुकेशन का? कैम्ब्रिज आएंगे तो उनका ये कहना होगा कि हाँ वेस्टर्न एजुकेशन मिला. अंग्रेज इंडिया में किसके साथ नेगोशिएट करते? इंडियंस के साथ. कितना अच्छा होगा कि एक इंडियंस का क्लास वो ऐसा तैयार कर दें जो अंग्रेजों की तरह सोचे, अंग्रेजों की तरह दिखे, अंग्रेजी में बात करे, है ना. एक इलीट क्लास ऑफ इंडियन पीपल, एंड विद देम दे विल नेगोशिएट. तो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस ने कहा ये तो पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए, किसके साथ बार्गेन करना है, इसके लिए उन्होंने एक नया क्लास तैयार कर लिया. वो क्लास जो उनकी बात ज्यादा बेहतर ढंग से समझता था. ठीक है. सो हियर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ पावर. So they created a new stakeholder of power which will ask for political bargains and it will negotiate with Britishers. ठीक है. तो ये कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस का थॉट है. तो वेस्टर्न एजुकेशन को लेके these are the important historical debates. Okay. So always remember that introduction of Western education in colonial India, it intended to serve the colonial needs. It intended to support the colonial structure. It intended to strengthen the colonial structure, but ultimately the development of Western education proved to be transformative and it introduced unintended consequences that was never thought by the Britishers, okay, in the form of growth and development of nationalism. तो ये जो स्टैंड है इस पे आपको मतलब लेके चलना है. ये स्टैंड कि ऐसा लाया गया, ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो कॉलोनियल पर्पस को सर्व कर सके, बट अनइंटेंशनली इसने क्या किया, है ना, हमारे यहाँ जो नेशनल थॉट्स है इनको प्रमोट किया. नाउ वी आर कमिंग टू द आंसर. सो दिस इज मॉडल आंसर नंबर 1. सो देयर इज वर्ड लिमिट, 150 वर्ड्स में ही आपको लिखना है, तो बहुत बड़ा आंसर हम लिख भी नहीं सकते. सो द सेम आंसर आई हैव रिटन इन 2 फॉर्मेट्स. वन इज in the format comprehensive paragraph and this is bullet format. So we'll discuss both these 2 models. और आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आंसर लिखो. ठीक है. आपके पॉइंट्स आने चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है. डज नॉट मैटर कि आप पैराग्राफ में लिख रहे हो या पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिख रहे हो. सो दिस इन दिस कॉम्प्रिहेंसिव आंसर आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट चेंजिंग पैराग्राफ विल सर्व द पर्पस. सो हियर द फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रो and the last paragraph is conclusion. Now this part is the main body, but in your answer
you will not write these words intro, main body or conclusion. You will present answer in such a way, you will change paragraph frequently so that it will serve the purpose. In paragraph I have written introduction, I have written that the introduction of Western education in India formalized through policies. Which policies? The policies like Macaulay Minute. This policy was initially aimed at creating a class of intermediaries to serve colonial administration. However, its impact went far beyond these intentions. So in introduction part itself, देखो introduction part में ही हमने वेस्टर्न एजुकेशन की बात कर दी. हमने कहा इसको कुछ पॉलिसीज से फॉर्मलाइज किया गया. उन पॉलिसीज में सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत कहां से हो जाती है? मैकॉलेज मिनट से. मैकॉलेज मिनट के एम को भी हमने बता दिया. इसका उद्देश्य क्या था? तो एक ऐसे मध्यस्थ या इंटरमीडिएट्स का क्लास तैयार किया जाए जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को सर्व कर सके. यही तो कह रहा था मैं कि कॉलोनियल पर्पज को सर्व करने के लिए डिजाइन किया गया था. लेकिन बट इट्स इम्पैक्ट वेंट फार बियॉन्ड दीज इंटेंशंस. इसका प्रभाव इससे आगे चला गया. ठीक है, तो वो कैसे चला गया ये हम बताएंगे सेकेंड पैराग्राफ में. तो इन सेकेंड पैराग्राफ आई हैव रिटन दैट वेस्टर्न एजुकेशन ने क्या किया? तो इट इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न आइडियाज सच एज रेशियलिज्म, लिबर्टी, इक्वलिटी, scientific thinking. It contributed to the emergence of a new middle class which spearheaded social and religious reform movement. देखो, मैकॉले सोचता था जो नया क्लास बनेगा वो हमारी ही बात सुनेगा. ठीक है, बट यहाँ पे जो नया क्लास बन रहा है, न्यू मिडिल क्लास, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स को लीड भी तो वही कर रहा है, नेशनल मूवमेंट को लीड भी तो वही कर रहा है, रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस को लीड भी तो वही कर रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड भी तो वही कर रहा है. तो ये बात आपको समझनी है कि वो जो नया मिडिल क्लास बना उसने रिफॉर्म मूवमेंट्स को या नेशनल मूवमेंट को लीड भी किया. ठीक है, अंग्रेज अपनी पॉलिसी में पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहे. बिपान चंद्रा नोट्स दिया, हियर हिस्टोरियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव आई हैव आल्सो इंक्लूडेड. बिपान चंद्रा क्या कहते हैं? ही नोट्स दैट इट आल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म बाय क्रिएटिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड अ शेयर्ड इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क. ये बात मैंने बताया था आपको बिपान चंद्रा क्या कहते हैं. In the next paragraph I have written, however, because limitations भी जरूरी है whenever we are critically examining, so obviously we will have to write some points that is related to the limitation. So in this paragraph I have written that however the reach of this education was limited to urban elites. ठीक है, ये जो वेस्टर्न एजुकेशन था ये लिमिटेड रहा, मासेस तक नहीं पहुंच पाया, अर्बन एलिट्स तक रहा, लीडिंग टू सोशल एक्सक्लूजन एंड कल्चरल एलिनेशन. इसका इंपैक्ट क्या रहा? मासेस तक नहीं पहुंच पाया तो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो इस शिक्षा से वंचित रह गया. इट वाज डिप्राइव्ड ऑफ सच काइंड ऑफ एजुकेशन. इससे क्या हुआ? कल्चरल एलिनेशन भी होगा. जो एजुकेटेड हो गए, एलीट एजुकेटेड, इंग्लिश एजुकेटेड पीपल, और ये इन दोनों के बीच में एक, मैंने कहा ना कि कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सियसनेस जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस बात करते. द कल्चरल एलिनेशन का मतलब ही मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस टॉक अबाउट कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्शियसनेस. तो बेसिकली हमने यहाँ वो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, जो मैंने कल्चरल इंपेरियलिज्म वाला अप्रोच बताया था, ये भी इंक्लूड कर दिया. ठीक है, तो इस तरह से मार्क्सिस्ट और सबल्टन हिस्टोरियंस का भी ओपिनियन आ गया. लास्टली आई हैव कंक्लूडेड दैट दिस while western education was a tool of colonial control, it paradoxically became an instrument of anti-colonial resistance. वेस्टर्न एजुकेशन एक टूल था कॉलोनियल कंट्रोल को एस्टैब्लिश करने का, बट पैराडॉक्सिकली ये क्या हो गया? एक इंस्ट्रूमेंट बन गया किस चीज का? एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस का. कॉलोनियल अथॉरिटी को विरोध करने का एक टूल बन गया, इंस्ट्रूमेंट बन गया. इलस्ट्रेटिंग द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी. तो इससे क्या हुआ? यही है इसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस कि नेशनलिज्म, ठीक है, कॉलोनियल अथॉरिटी, एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस, ये सबका एक टूल बन गया. दिस इज व्हाट अनइंटेंडेड consequences. The same answer when you will write in point wise format, you can write like this, that in answer you will not write these words introduction, main body and conclusion. ये लिखना नहीं है, यहाँ मैंने इसलिए लिख दिया है so that the structure is complete, आपके लिए थोड़ा convenient हो. You will change paragraph and the examiner समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं. So in intro part I have written that the introduction of Western education in India, especially through Macaulay's Minute, because मैकॉलेज मिनट का तो रेफरेंस हमें देना ही है, aimed to create a class of intermediaries for colonial governance. However,
द कॉन्सिक्वेंसेज ट्रांसेंडेड कॉलोनियल इंटेंशंस। यहां पे आप चाहो तो और इजी कर सकते हो, है ना। द हाउ दिस यू कैन से दिस इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस सम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, ऐसा भी कुछ लिख सकते हो। इन मेन बॉडी क्या हुआ उस एजुकेशन सिस्टम से, तो इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न आइडियाज हुआ, इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास हुआ। बिपान चंद्रा बताते हैं रोल ऑफ नेशनलिज्म, कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म हुआ, और साथ ही साथ इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। सो लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट पार्ट कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन से क्या हुआ, एंड दिस इज व्हाट लिमिटेशन। तो देखो क्या हुआ, स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर, क्रिटिकल इंक्वायरी। तो बुलेट फॉर्म में लिखने का फायदा, यू डोंट हैव टू राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। तो अगर आपका लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड नहीं भी है बट यू अंडरस्टैंड थीम, आप थीम को समझते हैं, यू हैव गुड कमांड ऑन कीवर्ड्स, तो आप अच्छा आंसर लिख के अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, प्रमोशन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स, ये भी एक मुद्दा हो गया। नेक्स्ट, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, राइज ऑफ एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया, और यही एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया जो है, दिस डिड व्हाट, दे लेड सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। फिर बिपान चंद्रा का थॉट लिख दो, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू, दैट इट जनरेटेड पॉलिटिकल कंसिस्टेंस, प्रोवाइडेड कॉमन इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क एंड फैसिलिटेटेड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। देन लास्टली यू विल राइट द लिमिटेशंस, ठीक है, कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन था, इट वाज रेस्ट्रिक्टिंग टू अर्बन एलिट्स ओनली, शहर में रहने वाले कुछ ही लोगों को ये शिक्षा मिल पाई, मासेस वर एक्सक्लूडेड, मिनिमल रूरल रीच, है ना, रूरल रीच नहीं रहा, या यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हो मासेस वेर एक्सक्लूडेड, है ना, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफोर्स सोशल इनइक्वालिटीज, ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है सोशल इनइक्वालिटीज वाला, कि इससे क्या हुआ, मासेस अगर एक्सक्लूड हो गए तो ये क्या हो गया, सोशल एक्सक्लूजन। साथ ही साथ मैंने क्या कहा, जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्शियसनेस, इलीट मास डिवाइड, कल्चरल एलिनेशन। तो इफ यू राइट दीज वर्ड्स ना, कि कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्शियसनेस, कल्चरल इंपेरियलिज्म, है ना, इस तरह से कीवर्ड्स अगर आप लिखते हो, सो दिस विल मेक योर आंसर बेटर। ओके, तो थीम को हमें समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द थीम, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लिंकेजेस, उसको भी समझना है, बट वी हैव टू हाईलाइट द कीवर्ड्स, mark the keywords with a highlighter and keep reading these keywords again and again। जैसे ये सब keywords है, ठीक है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना कल्चरल एलिनेशन, ये कीवर्ड है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जनरेटेड पॉलिटिकल कंसेंसस, आपको बार बार रीड करना है इसको, तो इससे क्या होगा, आपकी कीवर्ड्स पे कमांड अच्छी हो जाएगी, तो आप बुलेट फॉर्मेट में भी आंसर लिखेंगे और आप एक्सलेंट मार्क्स पा सकते हैं। दैट इज द की ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। नाउ कंक्लूजन में वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन, क्या लिखा, वेस्टर्न एजुकेशन दो डिजाइन फॉर कॉलोनियल कंट्रोल, डिजाइन तो इसे किया गया कॉलोनियल कंट्रोल के लिए, बट इट बिकेम अ कैटलिस्ट फॉर रिफॉर्म एंड नेशनलिज्म। ये कैटलिस्ट क्या होता है, स्कूल में पढ़ा होगा, दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिफॉर्म तो था पहले से, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नेशनलिस्ट थॉट्स एंड इंटेंशंस भी थे, बट एजुकेशन ने क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन ने क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन ने एक कैटलिस्ट का काम किया और रिफॉर्म्स को प्रमोट किया और अल्टीमेटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, इसको भी प्रमोट किया, एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग द पैराडॉक्स ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी, है ना, ये कॉलोनियल मॉडर्निटी के पैराडॉक्स को दिखलाता है। ये कॉलोनियल मॉडर्निटी के नाम पे वेस्टर्न एजुकेशन लाया गया, वेस्टर्न एजुकेशन के जो इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके अलावा जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस है ना, उन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ने इंडियंस को लाभ पहुंचाया, उस कॉलोनियल अथॉरिटी को ही वीक करने में इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गॉट इट? नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। Second question is related to the theme Tipu Sultan, and it is one of the most popular theme. I hope each and every one of you is familiar. Mysore state was a rising state, and it became a great challenge for the colonial authorities. Hyder Ali and Tipu Sultan, okay, were the person under whom Mysore emerged as a powerful state. Hyder Ali was the father, Tipu Sultan was the son. Okay, and we all have read about Mysore and Hyder Ali, about their diplomatic efforts, about their reforms, क्या उन्होंने reforms किए। Got it? ये सब कुछ तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। अब समझो 18th century crisis से कैसे इसको जोड़ के दिखाएं, because we have to interlink here
हैदर अली के बारे में तो पूछा नहीं है, बट वी ऑल नो दैट वॉट एवर हैदर अली डिड, ठीक है, हिज रिफॉर्म्स वेर कैरिड फॉरवर्ड बाई टीपू सुल्तान। तो जब आप टीपू सुल्तान लिखोगे तो कहीं ना कहीं हैदर अली के रिफॉर्म्स की बात कर ही रहे हो। बट हियर द क्वेश्चन हैज बीन लिंक्ड विथ 18th सेंचुरी क्राइसिस। क्वेश्चन को जोड़ दिया गया है किसके साथ? 18th सेंचुरी क्राइसिस के साथ। और 18th सेंचुरी क्राइसिस में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में आ रहे हैं? एक तो ध्यान में आ रहा होगा 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, कब हुई औरंगजेब की डेथ? 1707 में। तो 18th सेंचुरी ही तो है, 18th सेंचुरी का फर्स्ट टिकेट है। तो आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब व्हाट हैपेंड? ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्टेड। अब जब ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर है, और मुगल एम्पायर इज व्हाट? सेंट्रल अथॉरिटी। सो इससे ग्रेजुअली क्या होगा? पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। और जब पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होगा तो इससे क्या होगा? राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। ये बात समझ गए? जब सेंट्रल अथॉरिटी डिक्लाइन होगी, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होगा, व्हेन न्यू रीजनल स्टेट्स, ओके, autonomous, semi-autonomous or independent states will increase. So obviously the conflicts, you can say, between these states will increase, because वहाँ पे एक फेनोमेना था 18th सेंचुरी का कि हर स्टेट चाहता था कि उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज का एक्सटेंशन हो। जब आप ऐसा चाहोगे तो दूसरे के साथ आपकी लड़ाई होगी। तो इससे क्या होगा कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में एक खास बात देखी जाएगी, और वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस वॉरफेयर। हालांकि वॉरफेयर पहले भी था, बट व्हेन पॉलिटिकल अथॉरिटी विल डिक्लाइन, सो व्हाट विल हैपन? कॉन्टिन्यूअस वॉरफेयर। अच्छा, जब कॉन्टिन्यूअस वॉरफेयर होगा, लगातार लड़ाइयां होंगी, इफ द स्टेट विल फाइट कॉन्टिन्यूअस वॉर्स, अगर स्टेट कॉन्टिन्यूअस वॉर्स फाइट करेगा, सो फॉर दिस you will have to incur military expenses. इसके लिए आपको मिलिट्री एक्सपेंसेस करने होंगे, पैसा खर्च करना होगा, सैन्य खर्च करना होगा। अच्छा, मिलिट्री एक्सपेंस इज व्हाट? इकोनॉमिक एक्सपेंस। ये तो बिल्कुल इकोनॉमिक एक्सपेंस हो गया ना। एंड इफ द स्टेट इज फाइटिंग वॉर्स अगेन एंड अगेन, सो दिस इज एडिशनल इकोनॉमिक एक्सपेंसेस। स्टेट के अपने खर्चे होते हैं, जैसे अभी वॉर टाइम में खर्चे स्टेट के क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो बताओ, स्टेट उन खर्चों को कंपेंसेट कहां से करेगा? फ्रॉम वेयर द स्टेट विल कंपेंसेट दीज एक्सपेंसेस? सो ऑब्वियसली फ्रॉम द रेवेन्यूज द स्टेट विल कंपेंसेट दीज एक्सपेंसेस। रेवेन्यूज में जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो क्या है? एग्रीकल्चरल रेवेन्यू, ठीक है। तो अल्टीमेट बर्डन विल गो ऑन पीजेंट्स। इससे पीजेंट्स पर अल्टीमेट बर्डन जाएगा। दूसरी बात आपको क्या देखनी है कि कॉन्टिन्यूअस वॉर्स विल ऑल्सो रिजल्ट इन डिसरप्शन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर कॉन्टिन्यूअस वॉर्स होते हैं तो इससे क्या हो जाएगा? डिसरप्शन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य भी डिसरप्ट होगा। ऐसी कंडीशन में जो स्टेट्स होंगे उनका फोकस ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन पे होगा, ठीक है। यही है इंडियन पॉलिटिक्स और सोसाइटी की क्राइस 18th सेंचुरी की। दिस इज द क्राइसिस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ओके, एंड सोसाइटी इन 18th सेंचुरी। सोसाइटी परेशान है, समाज के लोग परेशान है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, ठीक है। स्टेट का बिहेवियर ऐसा हो गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे राज्य ही लूट में शामिल है। ये वो अनुभव है जो लगभग हिंदुस्तान में 18th सेंचुरी में बहुत सारे राज्यों के लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं। अब यहां पे आता है टीपू सुल्तान। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। टीपू सुल्तान हैड लिटिल सक्सेस। इसका मतलब क्या है? सेटिंग फोर्थ अ कोर्स ऑफ चेंज, यानी टीपू सुल्तान ने चेंज तो लाने की कोशिश की, बदलाव तो लाने की कोशिश की, बट क्वेश्चन कह रहा है उसको थोड़ी सफलता मिली। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि टीपू सुल्तान ने क्या बदलाव लाने की कोशिश की। तो टीपू सुल्तान ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, टीपू सुल्तान ने मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए, तमाम ऐसे रिफॉर्म किए। हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि टीपू के राज्य में जो किसान था
पीजेंट वो किसी ब्रिटिश इंडियन स्टेट के किसान से ज्यादा खुश था। पहली चीज तो ये है, ये बात आपको समझनी है। तो टीपू ने कोशिश तो की ये रिफॉर्म्स लाने की, बट ये रिफॉर्म्स ला के भी वो इस क्राइसिस को पूरी तरह से नहीं हैंडल कर पाया, क्राइसिस फिर भी बनी रही। ये क्वेश्चन है। तो देखो दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू भी है, बात सही है। टीपू ने बहुत सारा रिफॉर्म्स किया। टीपू ने इतना रिफॉर्म किया कि दूसरे स्टेट में रहने वाले लोगों का जो कॉमन एक्सपीरियंस है, टीपू के स्टेट में रहने वाले लोगों का कॉमन एक्सपीरियंस जो था उन लोगों से अलग हो गया। इट मीन्स दे वर इन अ कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन, बट द सिचुएशंस वर स्टिल चैलेंजिंग। सिचुएशंस अभी भी गंभीर बने हुए थे। क्यों बने हुए थे? अब लिमिटेशंस क्या है? Why Tipu had a little success? Why Tipu Sultan had a little success? ये भी बताना है आपको। तो टीपू सुल्तान had little success because इसके पीछे लिमिटेशन है, और लिमिटेशन क्या है? हैदर एंड टीपू both attempted to develop or form a military fiscal state. इन दोनों ने भी मिलिट्री फिस्कल स्टेट ही डेवलप करने की कोशिश की थी। मिलिट्री फिस्कल स्टेट का सीधा सा मतलब ये है कि एक ऐसा स्टेट जो अपने यहाँ रेवेन्यूज पॉलिसीज को, ये रेवेन्यू पॉलिसी को, इकोनॉमिक पॉलिसी को कुछ इस तरह से डिजाइन करेगा कि जिससे मिलिट्री जो है उसकी, उस राज्य की जो मिलिट्री है, सैन्य व्यवस्था, इसको मजबूत बना सके। इट मीन्स दैट मिलिट्री फिस्कल स्टेट सिंपली मीन्स अ स्टेट विच विल डायरेक्ट एंड डिजाइन its revenue policies, its fiscal policies in such a way that ultimately it would result in strengthening the military forces. तो मुद्दा तो यही है, ठीक है, कि आपने रेवेन्यू कलेक्शन को रैशनलाइज किया, वहां पे कोशिश की कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन ना हो, बट अल्टीमेटली आपका फोकस तो यही है ना। आपको पता होगा कि विथ फ्रेंच सपोर्ट, ओके, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टीपूज आर्मी, मैसूर आर्मी, ये सब चल रहा था, ठीक है, फ्रेंच के साथ सपोर्ट। साथ ही साथ आपको एंग्लो फ्रेंच वॉर भी पता होगा, एंग्लो फ्रेंच वॉर, ओके। टीपू के नेतृत्व में दूसरा 1780 से 84 था, तो 82 में हैदर की डेथ हो गई, तो 82 से 84 तक लीडरशिप टीपू के ही हाथ में हो रही। फिर इसके बाद थर्ड 1992, फोर्थ 99, तो वॉर, वो सिचुएशन जो थी वो बनी रही। तो आपको ये बात समझनी है कि टीपू ही नहीं, उसकी जगह हो सकता है कि आप किसी इमेजिन कर लो, खुद को इमेजिन कर लो कि मैं बहुत अच्छा रूलर हूं, मैं बहुत ही सुधार लाता। तो हमेशा याद रखो कि जो स्ट्रक्चरल, जो रियलिटीज ऑफ द टाइम है, किसी भी समय और काल की जो परिस्थितियां और वास्तविकताएं हैं वो पूरी तरह से बदल नहीं सकती। हम बदल सकते हैं, लेकिन जो जमाना चल रहा है, जो रियलिटीज ऑफ द टाइम है, वो वैसे ही रहेगा। हम बदल सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? लिमिटेशन हो गया, ओके। सो in any time, in any space, you will find that an individual's effort is constrained by the structural realities of the time. For example, I am teaching history, ठीक है, और I am teaching history in a perfect manner, ठीक है, बहुत बढ़िया से systematic way में, बहुत structured way में I am providing free classes on the YouTube channel. But what is the result? आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ने के लिए नायक किसको चुन रखा है? तो जैसा समाज होगा, अपने नायक तो वही चुनेगा ना। हिस्ट्री के महान शिक्षकों के रूप में अगर आप 5 नाम गिनेंगे, तो उसमें 5 क्या 50 भी गिनोगे तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी विजिबिलिटी नहीं है। तो समाज जैसा नायक चुनता है, समाज वैसा ही होता है। तो ये स्ट्रक्चरल रियलिटीज ऑफ द टाइम है, ठीक है। तो उसमें कोई रेसिस्ट करता है, उसमें बदलाव लाने की कोशिश करता है, थोड़ी बहुत सफलता मिलती भी है, लेकिन पूरी सफलता मिले ये जरूरी नहीं, राइट। तो टीपू की भी हालत ऐसी थी, ठीक है, कि टीपू इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स, बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड? टीपू रिफॉर्म्स लेके आ रहा है, रिफॉर्म्स लेके स्टेट की हालत बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। फारसाइटेडनेस है, अंग्रेज भविष्य में कितने खतरनाक हैं वो इस बात को समझ रहा है, अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हैदर अली डिप्लोमेटिक मीन से अपने रीजनल स्टेट्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि हम एक, मतलब एक्सेस बनाकर हम ब्रिटिश अथॉरिटीज के साथ लड़ सकते हैं। बट उसकी बात कोई दूसरा समझे तब भी तो बात बनेगी ना। मेरी बात समझ गया ना? आपका डिप्लोमेसी तभी सक्सेसफुल होगा जब दूसरे रीजनल स्टेट्स आपकी बात को समझ पाएंगे। तो इस तरह की लिमिटेशंस थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में जितनी बातें मैंने बताई, व्हाटएवर आई हैव डिस्कस्ड विथ यू,
यही स्टफ अल्टीमेटली आपको यूज करना है। बट अगर इफ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग तो यू कैन इजिली राइट इन 150 वर्ड्स। अगर आप समझ रहे हो तो अब आसानी से लिख सकते हो। गॉट इट? ओके, सो आई होप दैट नाउ यू अंडरस्टैंड। अब आप समझ रहे हैं कि वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड नाउ यू कैन इजिली राइट। चलिए तो देखते हैं। आंसर इसका लिखा है मैंने। देयर आर टू फॉर्मेट्स सिंस वी हैव टू राइट 150 वर्ड्स ओनली, 10 मार्कर क्वेश्चन है। So there are two formats. One is comprehensive format, second is bullet point format. तो first let's discuss comprehensive format. तो अब आप familiar हो चुके हो। This part is what? This part is intro. This part is what? This part is conclusion. This part is what? This part is main body. ये तो आप समझ रहे हो। But we are not writing these words in our answer. So in introduction part, what have I written? क्या लिखा हमने? The 18th century India was characterized by political fragmentation. ठीक है, 18th century India जो है इसके फीचर्स क्या है? तो देखो पहली चीज क्या है? पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। द सेकेंड पॉइंट मिलिटराइजेशन। मैंने कहा ना कि मिलिटराइजेशन क्यों है, यू नो द बेसिक आइडियाज। मिलिटराइजेशन क्यों है? ठीक है, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, ठीक है, autonomous, semi-autonomous and independent state, continuous conflict, continuous warfare, that's why militarization. And a system of plunder. मिलिटराइजेशन है तो सिस्टम ऑफ प्लंडर भी होगा ना। मिलिट्री एक्सपेंसेस कहाँ से आएंगे? लोगों से, रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन से, मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन से। सो दिस इज व्हाट सिस्टम ऑफ प्लंडर। ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल अथॉरिटी, ये सब क्यों हो रहा है? डिक्लाइन ऑफ मुगल अथॉरिटी की वजह से हो रहा है। विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट टीपू सुल्तान अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मैसूर। तो ये सारे चैलेंजेस थे 18th सेंचुरी के, और इनमें टीपू सुल्तान ने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। वो चेंजेस क्या है? सो इन पैरा 2 आई हैव रिटन दैट टीपू अंडरटुक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन, मॉडर्नाइज द आर्मी अलोंग विद द यूरोपियन लाइन्स। ये सब आपने पढ़ा होगा क्लासेस में। टीपू प्रोमोटेड स्टेट कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। बहुत सारे हिस्टोरियंस जब टीपू और हैदर की बात करते हैं तो वो इंडियन मर्चेंट कैपिटलिज्म की बात करते हैं कि इंडिया में भी स्टेट्स इतने प्रोग्रेसिव हो चुके थे वेयर द स्टेट पॉलिसीज वेयर गाइडिंग ओके द इकोनॉमिक पॉलिसी सो दैट द स्टेट्स कुड जनरेट मैक्सिमम रेवेन्यू। तो देखो ट्रेड एंड कॉमर्स से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने के पीछे जब हिस्टोरियन ये बताते हैं तो बताते हैं कि एक रीजन ये भी था मिलिट्री फिस्कल स्टेट। तो हिस्टोरियंस राइट अबाउट दिस इंडियन मर्चेंट कैपिटलिज्म। मर्केंटलिज्म तो आप जानते हैं ना, यूरोप में पॉलिसी यूरोपियन कंट्रीज की कि जिससे वो एक्सपोर्ट बढ़ाए और इंपोर्ट को मिनिमाइज करे, ज्यादा से ज्यादा बुलियन कलेक्ट करे। ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और उसी पॉलिसी से गाइडेड होकर यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई, यानी अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, रेवेन्यू बढ़ाना है। टीपू और हैदर भी वही कर रहे थे, इंडियन मर्चेंट कैपिटलिज्म। तो स्टेट पॉलिसीज यहां पे लिखा भी हुआ है कि देखो टीपू प्रोमोटेड स्टेट कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो क्यों? ताकि रेवेन्यू को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो टीपू एग्जिबिटेड फीचर्स ऑफ मिलिट्री फिस्कल स्टेट इंडिकेटिंग अटेम्प्ट्स एट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। वो कोशिश कर रहा था स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की, बट अल्टीमेटली जो मिलिट्री फिस्कल स्टेट है इस रियलिटीज के साथ कहां आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पैरा। हाउएवर दिस एफर्ट्स हैड लिमिटेड सक्सेस। हमने ये नहीं कहा कि टीपूज एफर्ट्स फेल्ड कंप्लीटली, या हमने ये भी नहीं कहा कि टीपूज एफर्ट्स वेर कंप्लीटली सक्सेसफुल। हमने क्या कहा कि दीज एफर्ट्स हैड लिमिटेड सक्सेस इन फंडामेंटली अल्टरिंग द प्रिवेलिंग पैटर्न ऑफ 18th सेंचुरी पॉलिटिक्स। यानी टीपू के लिए यह संभव नहीं हो पाया कि 18th सेंचुरी पॉलिटिक्स में जो पैटर्न था उस पैटर्न को वो पूरी तरह से चेंज कर दे। आप मैसूर में थोड़े बहुत रिफॉर्म्स कर सकते हो, लेकिन उस पूरे पैटर्न को अकेले कैसे बदल पाओगे? Continuous warfare, heavy taxation, dependence on military expansion meant that Mysore still operated within a framework of resource extraction similar to the contemporary states. तो देखो, चाहे भले ही आप लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर, लिबरल कहने का मतलब है कि जो पीजेंट फ्रेंडली हो, यहाँ पे चाहे कुछ भी रिफॉर्म करो, लेकिन अल्टीमेटली आपका भी जो उद्देश्य है वो दूसरे कंटेम्परेरी स्टेट्स की तरह ही रिसोर्स है ना, एक्सट्रैक्शन है। बट यहाँ पे देखो हिस्टोरियंस बताते हैं कि टीपू के स्टेट में रहने वाला जो पीजेंट था दूसरे ब्रिटिश इंडियन रूल्ड स्टेट्स के पीजेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा खुश था। ये बात है। कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस आर्ग्यू दैट टीपू रिमेन्ड
पार्ट ऑफ द ब्रॉडर पैटर्न ऑफ रीजनल पावर स्ट्रगल। ठीक है, वाइल्ड ये जो ओपिनियन है ना आपका, जो स्टेटमेंट आया कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट से ही इंस्पायर्ड स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या, वाइल टीपू सुल्तान रिप्रेजेंटेड अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर इन इंटेंट एंड इनोवेशन। टीपू के देखो इंटेंट पे कोई डाउट नहीं है, टीपू के इनोवेशन पे कोई डाउट नहीं है। ओके, हिज सक्सेस इन क्रिएटिंग अ फंडामेंटली डिफरेंट ऑर्डर इज रिमेन्ड कांस्टेंट बाय द स्ट्रक्चरल रियलिटीज ऑफ टाइम। उसके इंटेंट और इनोवेशन पे कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी उसकी जो सक्सेस है वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि उसकी सक्सेस लिमिटेड इसलिए है क्योंकि जो उसके सामने जो लिमिटेशंस थे, चैलेंजेस थे, वो क्या था? स्ट्रक्चरल रियलिटीज ऑफ द टाइम। दिस इज द आंसर। बट इफ यू राइट द सेम आंसर इन बुलेट फॉर्मेट तो आंसर कुछ ऐसा होगा। इंट्रोडक्शन विल बी द 18th century इंडिया विटनेस्ड पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एंड अ सिस्टम ऑफ प्लंडर। क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, हमने बता दिया। फॉलोइंग मुगल डिक्लाइन। इन दिस रेस्पेक्ट, इन दिस मिलियो, द टीपू सुल्तान अटेम्प्टेड नोटेबल रिफॉर्म्स इन मैसूर। क्या क्या रिफॉर्म्स किए? रिफॉर्म्स बताना, थोड़े से हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट बताना और लिमिटेशंस बताना, यही बताना है ना। तो रिफॉर्म्स में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात आपने की, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर दी, ये आपने रिफॉर्म्स बताया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में आपने बताया सेंट्रलाइजेशन एंड स्ट्रॉन्गर स्टेट कंट्रोल, कर्टेलमेंट ऑफ इंटरमीडिएरी पावर्स बता दिया। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में आर्मी रिकॉग्नाइज्ड ऑन यूरोपियन लाइंस, ये भी आप जानते हैं। यूज ऑफ मॉडर्न वेपन्स एंड डिसिप्लिन स्टैंडिंग आर्मी, ये भी जानते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज में आ जाओ, यहाँ चाहो तो स्ट्रक्चर बना के इंडियन मर्चेंट कैपिटलिज्म लिख सकते हो। स्टेट कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड मोनोपोलीज, रेवेन्यू एनहेंसमेंट एंड कॉमर्शियल एक्सपेंशन, इन ब्रैकेट आप इंडियन मर्चेंट कैपिटलिज्म लिख सकते हो। एग्जामिनर को लगेगा कि आपको मतलब थोड़ी हिस्टोरियोग्राफिकल इंसाइट्स पे। अब देखो इरफान हबीब का जो हिस्टोरिकल इंसाइट है वो ये है कि मैसूर एज मिलिट्री फिस्कल स्टेट, बताया ना मैंने आपको। क्लोज लिंक बिटवीन रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन एंड मिलिट्री नीड्स, यहां एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज द वर्ड्स आर लिमिटेड, अदरवाइज इसको ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है देखो, कॉन्टिन्यूअस वॉरफेयर एंड हैवी टैक्सेशन, डिपेंडेंस ऑन एक्सपेंशन, लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी, continuity with 18th century extractive pattern। ठीक है, कैम्ब्रिज स्कूल, टीपू एज रीजनल कंटेंडर नॉट रेडिकल मॉडर्नाइजर। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? डिस्पाइट इनोवेशन टीपूज रिफॉर्म्स अचीव्ड लिमिटेड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड व्हाई दे अचीव्ड लिमिटेड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन? बिकॉज it was constrained by contemporary political economic realities. So the same answer, if you want to write in comprehensive format, you can write like this. If you write to answer in bullet format, you can write like this. ठीक है, so you can choose your own style. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1C. The question is related to Vernacular Press Act. ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है. The question says that the Vernacular Press Act of 1878 was designed for better control of vernacular press and to empower the government with more effective means of punishing and repressing seditious writings. देखो, यानी देसी प्रेस अधिनियम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को देसी प्रेस पर बेहतर नियंत्रण के लिए बनाया गया था, जिससे सरकार और अधिक प्रभावी तरीके से राजद्रोही लेखन को दंडित और दमित करने में सशक्त बन सके। कॉन्टेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान जो हम मतलब एक तो टॉपिक क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। बट जब भी आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म पढ़ते हो तो यू ऑल्सो रीड अबाउट द टॉपिक दैट हाउ ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म को सप्रेस करने की इन्होंने कैसे कोशिश की। और जब हम उस सप्रेशन पे जाते हैं, हाउ द कॉलोनियल अथॉरिटीज, whenever we read about this, that how the colonial authorities tried to suppress growth and development of nationalism in India। तो इसमें एक नाम जो सबसे पॉपुलर है वो है लॉर्ड लिटन। और देखो जीएस में भी, जनरल स्टडीज में भी, जीएस प्रीलिम्स में, मेंस में, ऑप्शनल में, दिस थीम हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, लॉर्ड लिटन। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हो, पुराने थीम को भी पढ़ते हो, लॉर्ड लिटन के बारे में आपको सब कुछ पता होगा। लॉर्ड लिटन इज नोन फॉर व्हाट?
he is known for his reactionary policies, he is known for his imperialist policies. तो देखो reactionary policies, जब हम कहते हैं कि लॉर्ड लिटन is known for his reactionary policies, imperialist policies, what does it mean? reactionary का मतलब ही क्या हो गया कि सप्रेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, इसको सप्रेस करने के लिए लॉर्ड लिटन काम कर रहा था. जैसे उसी सप्रेशन में लॉर्ड लिटन का जो एक एफर्ट था या एक इनिशिएटिव था वो ये था वीपीए 1878, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878. बट इसके अलावा भी ये सिंगल नहीं था. अपार्ट फ्रॉम दिस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट देयर वाज आर्म्स एक्ट ऑफ 1878. आर्म्स एक्ट ऑफ 1878. आर्म्स एक्ट से क्या किया उसने? इंडियन पीपल वेयर फॉरबिडन टू कैरी फायर आर्म्स व्हाइल द यूरोपियंस डिड. हिंदुस्तानी लोग अपने साथ हथियार लेके, बंदूक लेके नहीं चल सकते थे, अंग्रेज लेके चल सकते थे. तो ये तो बहुत गलत बात हो गई ना भाई, है ना. आपने इंडियंस को डिसआर्म कर दिया, ठीक है. तो आर्म्स एक्ट विरोध हुआ, आर्म्स एक्ट का भी जम के विरोध हुआ. दिल्ली दरबार 1877 आपने पढ़ा होगा. एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी अफगानिस्तान में, ये भी खूब क्रिटिसाइज हो रहा था. ब्रिटिश टेक्सटाइल्स पर जो इंपोर्ट ड्यूटीज थी, उस इंपोर्ट ड्यूटी को लिटन ने बहुत कम कर दिया, और उस कम करने की वजह से जो अंग्रेजी सामान है वो हिंदुस्तान के बाजार में बहुत सस्ता हो जाएगा. और जब अंग्रेजी सामान हिंदुस्तान के बाजार में बहुत सस्ता हो जाएगा तो इससे जो भी इंडियन इंडस्ट्रीज है वो तबाही के कगार पे पहुंच जाएगी. तो देखो कई तरीके से उसने कर्व करने की कोशिश की. ही ऑल्सो ट्राई टू रिड्यूस द इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन द ब्रिटिश गुड्स. इन दिस वे देयर प्राइसेस इन इंडियन मार्केट वर रिड्यूस्ड. सो द इंडियन कंपिटिटर्स, इंडियन इंडस्ट्रीज कुड नॉट कम्पीट. तो उनको लॉस होगा, वो डिक्लाइन उनका खत्म होना शुरू हो जाएंगे. सो दे विल अपोज आर्म्स एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इन सब. इसी दौरान व्हेन लिटन वाज देयर 1876 to 78, famine took place that is known as the great famine in the history of India. 1876 से 78 के बीच में ही एक अकाल पड़ा जिसको द ग्रेट फैमिन इन इंडिया कहा जाता है. और इसमें गवर्नमेंट ने फैमिन के बाद देखो रिलीफ, प्रोवाइडिंग रिलीफ ड्यूरिंग फैमाइन्स, ये काम गवर्नमेंट का होता है. बट यहाँ पे फैमाइन के दौरान, अकाल के दौरान जो मिसमैनेजमेंट था, एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनसेंसिटिविटी थी, इसने हिंदुस्तानी लोगों को सोचने पे विवश कर दिया कि ये सरकार किस बात की सरकार है भाई, है ना. ऐसी सरकार के होने से ना होना बेटर है, और सोचने पे इसलिए विवश कर दिया. याद करो रिवोल्ट ऑफ 1857. रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद बाय द एक्ट ऑफ 1858 क्या हुआ था? EIC रूल वाज एंडेड एंड डायरेक्ट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. 1858 के बाद इंडिया में क्या है? डायरेक्ट ब्रिटिश रूल है. और इंडियन सब्जेक्ट्स वेर ट्रीटेड लाइक ब्रिटिश सब्जेक्ट्स. यही महारानी बोलती थी ना कि हिंदुस्तानियों को हम ब्रिटिश नागरिकों की तरह ट्रीट करते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव और अत्याचार नहीं होगा. तब हिंदुस्तानियों को 1878 मतलब 1858 के बाद, अब देखो कैसे बेवकूफ बनाते हैं. वो ये 1878 है. 15-20 साल गुजरने के बाद हिंदुस्तानी लोगों को लगा कि यार हम तो फिर से ठगे गए. कंपनी रूल में जिस तरह का टॉर्चर, जिस तरह का एक्सप्लॉयटेशन हमारे साथ होता था, वो तो अभी भी हो रहा है. इट मीन्स अंग्रेजों ने हमें दोबारा बेवकूफ बनाया, है ना. That like the EIC was exploiting Indian people, the same thing is happening. There is direct British rule, British Indian government, and here also we are exploited. The government, the administration is insensitive. तो जब लोगों को ये सारी चीजें दिखेंगी, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं कि लिटन जो है एक तरह से सिंबल है, प्रतीक है. किस बात का सिंबल है? हाई इंपीरियलिज्म एंड रशियल एरोगेंस का. जैसे मैकॉले है ना, मैकॉले में जो रशियल एरोगेंस आपको दिखती है, रशियल एरोगेंस मैकॉले में, वही रशियल एरोगेंस आपको लिटन में भी दिखता है. तो अमरीश पुरी हैं ये अपने समय के, ये ध्यान रखो. रिपन जो था वो अच्छा वाला था, गवर्नर जनरल. तो लिटन और वो क्या कहते हैं, मैकॉले, इन दोनों में हमें वो रशियल एरोगेंस साफ साफ दिखता है. और लिटन का टाइम ऐसा था कि ये पीक ऑफ कह सकते हो अथॉरिटेरियन कॉलोनियल रूल, मतलब दमन के एकदम चरम पे पहुंच चुका था. अब जब ऐसी सिचुएशन होगी तो लोग रिएक्ट करेंगे. हाउ द पीपल विल रिएक्ट. अब सवाल ये है कि हाउ द पीपल विल रिएक्ट, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या क्या तरीके हो सकते हैं आपके.
आपके तरीके हो सकते हैं, आप कविताएं लिख सकते हो, पोएट्री लिख सकते हो, जिसमें हमारे देश की जो व्यथा है इसका बखान कर सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो और वो लोगों तक पहुंचेगा। पोएट्री एक माध्यम हो सकता है, पैम्पलेट्स हो गए या आर्टिकल्स लिख सकते हो। अच्छा देखो, अगर हम इंग्लिश में आर्टिकल लिखेंगे तो कितने लोग समझ पाएंगे हिंदुस्तान में 1878 में, कितने लोग समझ पाएंगे? तो अगर वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में, जैसे बंगाल में बंगाली में, महाराष्ट्र में मराठी में, ठीक है, इस तरह से वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में अगर लिटरेचर लिखा जाए, अखबार में कविताएं भी आती हैं ना, मेरी बात समझ गया? तो वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस का जो लिटरेचर है या जो वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स हैं, उसके थ्रू जो कॉमन मासेस है उन तक अपनी बात पहुंचाना ज्यादा आसान हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट। द पीपल वेर नाउ फेड अप, दे वर डिसअपॉइंटेड with the colonial authorities. They thought that there is no change even after 1858. 20 years have passed and the government is behaving the same like company rule and administration. So they were not happy. So they started criticizing the government. Okay. And in Indian languages, in regional languages, they did what? They started writing their opinions, dissatisfaction. And in this way, all these ideas were reaching to the common masses. अंग्रेजी सरकार को लगा ये तो खतरनाक हो जाएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, नॉट इंग्लिश प्रेस, वर्नाक्यूलर प्रेस। तो टारगेट जो वीपीए में है वो कौन है? वर्नाक्यूलर प्रेस है। इन वीपीए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द टारगेट कौन है? टारगेट है वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस के प्रेस। तो अगर कोई भी चीज आपने लिखी जो सरकार के खिलाफ है, मतलब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ है उस समय, तो दैट वाज ट्रीटेड एज सिडिशियस। पहली चीज, उसको देशद्रोह मान लिया जाता था और वो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाता था। कॉन्फिस्केटेड, प्रिंटिंग प्रेस वाज कॉन्फिस्केटेड। उस प्रिंटिंग प्रेस से जो भी पब्लिश्ड मटेरियल है उन सबको जब्त कर लिया जाता था। इट ऑल वाज सीज्ड, है ना। जो प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने के लिए आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अथॉरिटीज के पास जमा करते हो, दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वाज टेकन अवे बाय द मजिस्ट्रेट, वो भी जब्त हो जाता था। आप इन सब जो एडमिनिस्ट्रेशन सप्रेस कर रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस को, यू डिड नॉट हैव द राइट टू अपील इन द कोर्ट्स, अपील नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर। तो सीधा सीधा दिखता है द टारगेट वाज वर्नाक्यूलर। एंड व्हाई द टारगेट वाज वर्नाक्यूलर? बिकॉज द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू कर्ब द ग्रोइंग सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमॉन्ग द इंडियन masses, and they were trying to suppress the nationalist sentiment among at any cost. It also shows that the government is racially discriminated. They are targeting only vernacular languages press, not English language. So this is a classic case of how the colonial government suppressed civil liberties in India. Okay, so this is the point. Okay, so I hope that you have got this idea. VPA, Lord Dayton, development of nationalism, why people were dissatisfied. तो आपको थीम पता हो गया। अब देखो, there are important historical debates. जैसे बिपान चंद्रा, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, this school of thought will say that VPA 1878 जो लाई गवर्नमेंट लेके आई, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, इसका टारगेट इससे ये दिखता है साफ साफ कि द ऑब्जेक्टिव वाज टू कर्ब द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। इसका उद्देश्य क्या था? नेशनलिज्म को कर्ब करना, रोकना। ठीक है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जब इसको देखते हैं तो वो कहते हैं कि जो मिडिल क्लास कॉन्शियसनेस या मध्य वर्ग की चेतना का जो विकास हो रहा था और उसको कर्ब करने के लिए वीपीए लाया गया। इस तरह की चीजें है ना। सबल्टन कहते हैं जो इंडिजिनस वॉइसेस हैं वो काफी इंपैक्टफुल, काफी पावरफुल थी और शुरू से इनको दबाने की कोशिश की जाती रही। वीपीए इसीलिए लाया गया और हमारी हिस्ट्री राइटिंग में भी उन सबल्टन वॉइसेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। दिस इज सबल्टन थॉट। ओके, सो देयर आर डिफरेंट थॉट्स एंड ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस, बट वी ऑल शुड नो दैट VPA 1878 was a colonial response, colonial reaction, okay, against the growth of nationalism in India, curbing the Indian languages newspaper, regional languages newspaper, vernaculars which were shaping national opinion at that time. So I hope that you have got this idea. Again, I am writing the question. The Vernacular Press Act of 1878 was designed for better control of vernacular press and to empower the government with more effective means of punishing and repressing seditious writings. देसी प्रेस अधिनियम VPA 1878 को देसी प्रेस पर बेहतर नियंत्रण के लिए बनाया गया था, जिससे सरकार और अधिक प्रभावी तरीके से राजद्रोही लेखन को दंडित और दमित करने में सशक्त बन सके।
दैट इज द आइडिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको। दिस पार्ट इज व्हाट, पैराग्राफ 1, दिस इज व्हाट इंट्रोडक्शन, दिस इज व्हाट कंक्लूजन, दिस इज व्हाट मेन बॉडी, यही है ना। इन इंट्रोडक्शन पार्ट इट हैज बीन रिटन दैट द वीपीए 1878 इनैक्टेड अंडर लॉर्ड लिटन, ये तो बताना ही पड़ेगा, इट वॉज अ रिप्रेसिव मेजर, ठीक है, aimed at curbing the growing influence of Indian language newspapers, and these newspapers had begun to articulate nationalist criticism of colonial policies, promoting prompting British anxiety। यानी कि ये एक रिप्रेसिव मेजर था गवर्नमेंट का, और इसका उद्देश्य था कि जो इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स, इनको प्रभाव को रोकना। और इन न्यूज़पेपर्स ने क्या करना शुरू कर दिया था, कॉलोनियल पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म इसको बोलते हैं, जिससे अंग्रेजी सरकार की चिंताएं बढ़ा दी थी, प्रॉम्प्टिंग ब्रिटिश एंग्जाइटी। इसके बाद और क्या किया इस एक्ट ने, ये बताया मैंने सेकेंड पैरा में। द एक्ट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू इम्पोज प्री सेंसरशिप, ठीक है, कॉन्फिस्केट प्रिंटिंग प्रेस, जब्त कर सकते थे। दे कुड पेनलाइज पब्लिकेशंस डीम्ड सेडिशियस बोल के बंद कर सकते थे, प्रतिबंधित कर सकते थे पब्लिकेशंस को। Notably, it discriminated against vernacular press while exempting English language newspapers। ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, प्रजातीय भेदभाव, कि अपने इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स को छोड़ दिया, रिवीलिंग इट्स रेशियल एंड पॉलिटिकल बायसनेस। फिर हिस्टोरिकल ओपिनियन भी, इनसाइट्स भी यहाँ हमने इंक्लूड किया। वो क्या है, बिपान चंद्रा। VPA was a direct response to the rise of political consciousness among Indians। ये सीधा देखा रहा कि भारतीय लोगों में पॉलिटिकल कंसिस्टेंस, राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही थी, और इसको रोकने के लिए वीपीए लाया गया। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जो सुमित सरकार है, इंटरप्रेट इट एज एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द इमर्जिंग पब्लिक स्फेयर। वो इमर्जिंग पब्लिक स्फेयर जो मिडिल क्लास कंसिस्टेंस है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश के रूप में बताते हैं। फिर इन दिस पैरा आई हैव रिटन दैट हाउएवर द एक्ट प्रूव्ड काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है। जब आप दमन करोगे, ध्यान रखो, जब भी किसी आंदोलन का बलपूर्वक आप दमन करने की कोशिश करोगे, वो आंदोलन और बड़ा हो जाएगा। इसीलिए सबसे बेहतर होता है किसी भी आंदोलन की मांगों को तुरंत अकोमोडेट करना। ज्यादा तो यहां पे क्या है, कॉलोनियल अथॉरिटीज ने क्या किया कि इट इंटेंसिफाइड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। ये रिप्रेसिव था, तो इसने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को और भी ज्यादा इंस्पायर किया। एक्सपोज द ऑथोरिटेरियन नेचर ऑफ कॉलोनियल रूल, और इससे अंग्रेजों का जो असली चेहरा है वो उभर के सामने आ गया। ऑथोरिटेरियन नेचर ऑफ कॉलोनियल रूल जो है ये उभर के सामने आ गया। इट्स इवेंचुअल रिपील इन 1882 इफेक्टेड इट्स फेलियर, है ना, रिफ्लेक्टेड इट्स फेलियर। यानी 1882 में इस एक्ट को रिपील कर दिया गया, निरसित कर दिया गया, ठीक है, नल एंड वॉइड कर दिया गया। जब रिपन आता है, ये दिखाता है कि अल्टीमेटली ये सक्सेसफुल नहीं रहा, है ना, नेशनलिस्ट फीलिंग्स और ज्यादा पावरफुल हुई, ठीक है। रिपन आता है, तो देखो रिपन बहुत ही समझदार है एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने कहा ना कि आंदोलन को जितना ज्यादा दबाओगे वो उतना बढ़ेगा। तो रिपन अगर इंडिया में है तो ऐसा तो है नहीं कि वो भारत की आजादी के लिए है, वो कॉलोनियल अथॉरिटीज को, कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सकता है, इसके लिए भेजा गया था। तो उसने अपना दिमाग लगाया चीजों को हैंडल करने के लिए। कंक्लूजन क्या है, दस वाइल डिजाइन्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिप्रेशन, वीपीए inadvertently contributed to the growth of Indian nationalism, ठीक है। अल्टीमेटली जो भी सप्रेशन होगा, जैसे देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो रिजल्ट क्या हुआ आपको पता ही है, स्वदेशी मूवमेंट। तो उसका कुछ ना कुछ, जैसे सूरत स्प्लिट के बाद जो ब्रूटल सप्रेशन और रिप्रेशन ऑफ फॉलोअर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, यूथ का जो सप्रेशन किया बलपूर्वक अंग्रेजों ने, उसका नतीजा क्या कहा रहा, फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो ऐसी चीजें हैं। नाउ इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट, इफ यू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द आंसर विल बी लाइक दिस। इन इंट्रोडक्शन पार्ट वी विल राइट दैट द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट enacted under Lord Lytton sought to curb the rising influence of Indian language newspapers that increasingly voiced nationalist criticism. In main body, we will discuss about the nature of act, we will discuss the discriminatory character, political intent, and lastly some historiographical insights, and we will also discuss the significance as well as conclusion. So in nature of act, we are writing here that VPA imposed pre-censorship on vernacular publications. It allowed confiscation of presses and penal election for seditious content.
टारगेटेड ओनली वर्नाक्यूलर प्रेस, यही है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इंग्लिश प्रेस वेयर गेटिंग एग्जाम्पशन, अंग्रेजी प्रेस पे ये नहीं लगाया गया प्रतिबंध। रिफ्लेक्टेड रेशियल बेसिस एंड फियर ऑफ मास मोबिलाइजेशन। सप्रेस नेशनलिस्ट ओपिनियन एंड क्रिटिसिज्म, ये उसका पॉलिटिकल इंटेंट है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनियल इंफॉर्मेशन कंट्रोल, हिस्टोरियोग्राफी बता ही चुका हूं बिपिन चंद्र क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टू द राइजिंग पॉलिटिकल कंसिस्टेंस, हिंदुस्तान के लोगों में राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी और इसको रोकने के लिए वीपी 1878 लाया गया था। सुमित सरकार क्या कह रहे हैं कि इमर्जिंग पब्लिक स्फेयर, जो मिडिल क्लास का कंसिस्टेंस है ना, इसकी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है इसको कर्व करने के लिए वीपी 1878 लाया गया। सिग्निफिकेंस क्या है, तो इट रिवील्ड द रिप्रेसिव कॉलोनियल नेचर, इट स्ट्रेंथेंड नेशनल यूनिटी इंक्लूडिंग मॉडरेट्स। Lastly, what is the conclusion? The conclusion is, though repressive in intent, the act paradoxically accelerated national consciousness and resistance. Repressive था, but paradoxically इसने क्या किया, जो हमारा आंदोलन था उसको और तेज बना दिया। जैसे एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन लाया किसी और उद्देश्य से गया था और उसने क्या किया, पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाया और नेशनलिज्म को और स्ट्रेंथन किया। उसी तरह से वीपीए लाया गया था रिप्रेशन के लिए, बट अल्टीमेटली वीपीए क्या कर देता है ना, जब गवर्नमेंट इसको रिप्रेस करती है, पावरफुली सप्रेस करती है, हेलो, ठीक ठीक ठीक, तो पावरफुली सप्रेस करती है तो उसका नतीजा क्या है ना, कि आंदोलन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन इज, द राइज ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इन 1920s lent a militant and revolutionary content to the trade union movement। यानी 1920s में, अब यहां पे देखो बात चल रही है 1920s की, और साथ ही साथ राइज ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, पिछली क्लास में भी था ना एक, तो देखो 20 में भी पूछा, 21 में भी पूछा, राइज ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट कह रहा है कि lent a militant and revolutionary content to the trade union movement। तो here it is linking two things। First, trade union movement जिसको सिंबलाइज करता है एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और कह रहा है कि 20s में जो दूसरे डेवलपमेंट हुए कम्युनिस्ट मूवमेंट के, जैसे मान लो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बनना है ना, या फिर एचआरए का बनना, या फिर एचएसआरए का बनना, ठीक है, इस तरह से और भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर है। कहा कि इन्होंने क्या किया, यहां पे ट्रेड यूनियन मूवमेंट में, राइट, जो भी कंटेंट इसका था, जो भी मेथड इसका था, इस मेथड को यहां और भी ज्यादा मिलिटेंट और रिवॉल्यूशनरी बना दिया। यानी यहां पे क्या हो गया, डिमांड्स और भी ज्यादा रेडिकल हो गई। यानी एटक में डिमांड लेस रेडिकल है, बट इसके बाद जो डेवलपमेंट्स है, हियर द डिमांड्स आर मोर रेडिकल। दिस इज द एंटायर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। पूरा डिमांड क्वेश्चन का यही है। प्रीलिम्स में भी तो पढ़ते हो आप लोग, कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया पढ़ते हो कि नहीं, पढ़ते हो ना, एटेक के बारे में पढ़ते हो, एचआरए के बारे में, एचएसआरए के बारे में। मेंस में हम क्या करते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को ठीक ढंग से समझते हैं, ऑप्शनल में हम उसको थोड़ा हिस्टोरिकल इंसाइट्स के साथ जोड़ लेते हैं। जैसे when we talk about communist ideology in India, तो आपको पता ही है कि रशियन रिवॉल्यूशन 1917 इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ 1920s में ही क्यों दिखता है, बिकॉज वी सी 1917 बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, इसके बाद इसका बहुत ही तेज एक्सपेंशन होगा और इसका इम्पैक्ट 1920s में इंडिया पर भी होगा। दिस इज ऑल्सो वन रीजन, ठीक है, 1920s में इंडिया पे भी होगा। तो रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है, जैसे एम.एन. रॉय या एस.ए. डांगे, ये सारे नाम आपने सुने होंगे, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी, कानपुर में इसको एस्टैब्लिश किया था। ऑब्वियस है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव कम्युनिस्ट पार्टी है तो क्लास स्ट्रगल की बात करेंगे, राइट्स की बात करेंगे वर्कर्स की, या फिर एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी कॉलोनियलिज्म, ये हमेशा रहेगा कम्युनिस्ट पार्टी का, एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी कॉलोनियलिज्म। साथ ही साथ पीजेंट्स, वर्कर्स, ट्रेड यूनियनिज्म, इन सबको जोड़ के ले चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और चूंकि एंटी इंपीरियलिज्म और एंटी कॉलोनियलिज्म है, सो इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म और इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंड इट विल इंट्रोड्यूस सोशलिस्ट आइडियाज इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है।
पीजेंट्स और जो वर्कर्स मूवमेंट है इनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले क्या है कि 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, जैसे मान लो सूरत हो गया, बॉम्बे हो गया, ठीक है, तो टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स और ऐसे तमाम जगहें थी जहाँ पे फैक्ट्रीज थी, उन फैक्ट्रीज पे वर्कर्स काम करते थे, तो वर्कर्स की भी अपनी कंसर्न्स थी। द कंसर्न ऑफ द वर्कर्स वर रिलेटेड टू इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशंस इनसाइड द फैक्ट्रीज, इम्प्रूविंग द वेज स्ट्रक्चर, जो नॉर्मल एक डिमांड होती है श्रमिकों की कि भाई वर्किंग कंडीशंस ठीक हों, सेफ हों, वेजेस हों, तमाम इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया ही इसीलिए गया कि जो वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, वर्कर्स स्पेशली, ऑल इंडिया नाम है इसका, तो हम उसको क्या करें कि उनके जो भी कंसर्न्स हैं, उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं, उन सबको एड्रेस कर सकें, है ना, यानी लेबर पॉलिटिक्स, ये चीज़ें हैं। बट 1920s के बाद हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इन पर कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा। जैसे एटक में आप देखते हो तो जो इसमें लीडर्स हैं, जैसे लाला लाजपत राय तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ही हैं, एनएम जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, बीपी वाडिया, एसए डांगे, मुजफ्फर अहमद, वीवी गिरी, वीवी गिरी से क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछा गया था, है ना, ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़े हुए थे, आया था ना प्रीलिम्स में, अभी ईयर मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन 1-2 साल पहले ही आया था, ठीक है। तो अब देखो क्या है, एटक के जब स्ट्रक्चर को देखते हो, एटक में लीडर्स को देखते हो, तो वहां सबसे खास बात क्या है कि द लीडर्स इन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है ना, वेर हैविंग ऑब्जेक्टिव्स लाइक, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है वो यही 2 है, मतलब और भी है बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशंस इन द फैक्ट्रीज, और दूसरा क्या है कि जो वेजेस हैं वर्कर्स के, इनको बढ़वाना, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। और जो लेबर है, जो श्रमिक है, इंडस्ट्रियल लेबर है, इसको ऑर्गेनाइज करना, इसको संगठित करना। क्यों संगठित करना? अगर इसको हम संगठित करेंगे तो जो कॉलोनियल अथॉरिटी है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है, इसके खिलाफ कोई भी जो मूवमेंट होगा उसमें इन वर्कर्स को हम जोड़ सकते हैं। तो ये मुद्दा चल रहा था। अब और ये जो है ना, ये डिमांड कोई बहुत ही ज्यादा रेडिकल और मिलिटेंट डिमांड नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, दिस डिमांड इज नॉट अ वेरी रेडिकल और मिलिटेंट डिमांड, ये बहुत रेडिकल डिमांड नहीं है। बट हम देखते हैं कि इसके बाद जो डेवलपमेंट है, जैसे एचआरए है 1924 में, एचआरए सीधा कहता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, कि हमारा ऑब्जेक्टिव है इंडिया से ब्रिटिश रूल को उखाड़ फेंकना, टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, थ्रू आर्म्ड रिवॉल्यूशन। तो देखो चेंज आया कि नहीं, एचआरए आ रहा है तो क्या कह रहा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया थ्रू आर्म्ड रिवॉल्यूशन। अब यहां और यहां फर्क नजर आ रहा है कि नहीं, एटक की डिमांड्स में और एचआरए की डिमांड्स में फर्क नजर आ रहा है कि नहीं, सीधा फर्क है। इसी को कहा जा रहा है कि रेडिकल, देखो ये आ रहा है ना यहाँ पे कि मिलिटेंट और रिवॉल्यूशनरी कंटेंट दे दिया ट्रेड यूनियन मूवमेंट को, यानी ट्रेड यूनियन मूवमेंट का ही एक्सटेंशन है। बट यहाँ पे जब हम एचआरए में आ रहे हैं तो टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म्ड रिवॉल्यूशन, ये उसको ज्यादा रिवॉल्यूशनरी बना दे रहा है, ठीक है। जब हम एचएसआरए की बात कर रहे हैं तो एक कदम और आगे बढ़ जा रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये तो कहते हैं कि हमें सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाना है, ठीक है, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाना है। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म की बात करते हैं, ये कहते हैं कि भैया सोशलिज्म को रिप्लेस करो किस चीज से, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म से। हिंदुस्तान में सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन होगा, हिंदुस्तान की एक सोशलिस्ट रिपब्लिकन की एक आर्मी भी होगी, है ना। और इसके बाद जो एक्टिविटीज हैं इनकी, जैसे एचआरए की एक्टिविटी क्या है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। एचएसआरए में आप आ जाते हो तो इनकी एक्टिविटीज भी है ना, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, असेंबली बॉम्ब केस, तो तमाम इस तरह की चीजें। तो इसको देख के आपको क्या लगता है, इट इंडिकेट्स कि एटक के बाद जो 1920s में, 1920s ही तो है, चाहे सीपीआई 1925 की बात करो, 1924 एचआरए की बात करो, 1928 एचएसआरए की बात करो, तो इसने क्या किया कि एक रिवॉल्यूशनरी कंटेंट उसको दिया, ठीक है, ये चीज है। अब हिस्टोरियोग्राफिकल इंसाइट्स क्या है इस टॉपिक के आसपास, तो देखो नेस्लिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में
ये कहा जाता है कि जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, जैसे कि एटक ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ये बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट को ही स्ट्रेंथन कर रहा था, उसको और भी ज्यादा मजबूत कर रहा था। जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल है, इस एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को ही ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट मतलब स्ट्रेंथन कर रहा था। यहां बताया भी मैंने आपको कि एटक का ऑब्जेक्टिव इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशंस, वेजेस, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं इनको ऑर्गेनाइज करना, ताकि किसी मूवमेंट में जो कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हो, हम इनको क्या कर सकें, है ना, तो अपने साथ लेकर आगे बढ़ सकें। सो दिस इज द पॉइंट। तो इसीलिए नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस आर सेइंग कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट were having a broader objective, they were part of the anti-colonial struggle. That is the point, है ना। Now the next point, Marxist historians will say कि the later what we see that the communist politics that entered or that become a part of trade union movement later, they did what, है ना, they radicalized labor politics। यही तो हुआ। यहां पे क्या है एटक में, लेबर पॉलिटिक्स, लेबर पॉलिटिक्स। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन क्या कहते हैं, ये जो डेवलपमेंट है इसने क्या किया, इस लेबर पॉलिटिक्स को रेडिकलाइज कर दिया। दे रेडिकलाइज द लेबर पॉलिटिक्स। यही स्टेटमेंट तो है, मार्क्सिस्ट ओपिनियन से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है, बट लिखते हुए हमें इसके सारे डायमेंशंस को बताना होगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ गए। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने क्या कहा कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट को इन्होंने क्या किया, रेडिकलाइज कर दिया। यही तो बात मैंने बताया, एंड दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये चीजें हैं। सबल्टन कहते हैं कि इलीट लीडरशिप को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है इंडियन हिस्ट्री में, बट वर्कर्स की जो या पीजेंट्स की जो ऑटोनोमस कॉन्शियसनेस है, उनकी जो कॉन्शियसनेस है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में, वो ऑटोनोमस है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे और उन्होंने काफी सफलता भी पाई, बट इतिहास में इस बात पे ज्यादा जोर नहीं दिया गया। इस तरह की बात वो कहते हैं। गॉट इट। तो मुझे लगता है आप इस आइडिया को समझ पाए होंगे। नाउ यू हैव अंडरस्टूड द आइडिया। एक बार और मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, देन आई विल रीड द आंसर। दैट द राइज ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इन 1920s लेंट अ मिलिटेंट एंड रिवोल्यूशनरी कंटेंट टू द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहना हाँ हाँ ऐसा ही था या ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है। देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड व्हाइल राइटिंग आंसर यू विल हैव टू इनकॉर्पोरेट। यही सारी चीजें आपको बतानी है। तो दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कुछ अप्रोच आ गया है आंसर का, एंड दिस इज कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आई हैव रिटन इन 1920s. The 1920s marked a crucial phase in the evolution of Indian trade union movement, है ना, coinciding with the rise of communist ideology. तो मैंने क्या कहा कि 1920s में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है ये धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है किसके साथ, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ कैसे जुड़ता जा रहा है, तो इसमें आप बताओगे HRA, आप बताओगे फॉर्मेशन ऑफ CPI, आप बताओगे HSRA, धीरे धीरे इसके साथ जुड़ता चला गया, है ना। इनिशियली ट्रेड यूनियंस लाइक AITUC, ATEC were dominated by moderate nationalist leaders. यानी ट्रेड यूनियन मूवमेंट है तो ये एक तरह से सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस, बट इट वाज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट नेशनलिस्ट लीडर्स। और ये फोकस कहां कर रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक डिमांड सच एज वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस। तो इनकी जो मेन डिमांड है वो क्या है, इकोनॉमिक डिमांड, वेज एंड वर्किंग कंडीशन, इनकी ये डिमांड है। तो ये वेज एंड वर्किंग कंडीशंस की डिमांड ये बहुत ही रेडिकल डिमांड नहीं है, बहुत रिवोल्यूशनरी डिमांड नहीं है। बट इसके बाद क्या होता है, लुक हियर, विद द इमर्जेंस ऑफ कम्युनिस्ट ग्रुप्स, जिनकी बात हम यहां कर रहे हैं, इंस्पायर्ड बाय द रशियन रिवोल्यूशन 1917, inspired by the labor movements, they acquired a more militant and ideological orientation. इनका ज्यादा militant और ideological orientation हो गया। जैसे अब वो खुल के बात कर रहे थे, किस चीज की बात कर रहे थे, क्लास स्ट्रगल की, स्ट्राइक्स की बात हो रही थी, ठीक है। वर्कर इश्यूज को एंटी इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज के साथ जोड़ के देखा, ठीक है। नाउ दे वर टॉकिंग अबाउट क्लास स्ट्रगल, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक, लिंक्ड वर्कर इश्यूज विद द एंटी इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज, ठीक है। इसके साथ ही मैंने HRA और HSRA में बात भी कहा कि यहां पे क्या करना है, टू अपरूट ब्रिटिश रूल विथ आर्म्ड रिवेलियन। ये क्या कह रहे हैं कि रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन आर्मी, इट मींस दैट, सुमित सरकार लिखते हैं और यही स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा गया है कि दिस फेज
फेज का मतलब 1920s, इट मार्क्ड अ ट्रांजिशन फ्रॉम इकोनॉमिक बार्गेनिंग टू पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर लेना कि यहां पे बेसिकली क्या चल रहा है। अकॉर्डिंग टू सुमित सरकार, एटक में इसको सुमित सरकार ने कहा इकोनॉमिक बार्गेनिंग। ये क्या कर रहा है, इंप्रूविंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स वेजेस, तो इसको सुमित सरकार ने इकोनॉमिक बार्गेनिंग कहा। 1920s में ये जो बाद में डेवलपमेंट्स इसमें ऐड होते हैं, इसकी वजह से पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, तो इकोनॉमिक बार्गेनिंग के बाद ये जो डेवलपमेंट है ये किस चीज को लेके आ रहा है, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म को। और यही इस आंसर का सबसे की पॉइंट है कि एटक, अब आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में, फिर यहां लिख देना HRA, CPI, HSRA, ठीक है, डोमिनेटेड बाय मॉडरेट लीडर्स। यहां लिख दो इकोनॉमिक बार्गेनिंग, फिर यहां वेजेस, इंप्रूविंग लाइफ कंडीशन ऑफ वर्कर। तो अब ये बात समझ गया ना कि यहां पे चेंजेस हुए। तो बट द एक्सटेंट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज लिमिटेशन। मैंने बताया कि व्हेनेवर वी आर क्रिटिकली एग्जामिनिंग, सो वी मस्ट हैव टू राइट द लिमिटेशंस। लिमिटेशन के पॉइंट्स तो हमें लिखने ही है। तो लिमिटेशन में क्या लिखा, द एक्सटेंट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज लिमिटेड, द वर्किंग क्लास बेस remained narrow, and state repression including arrest, bans, curtailed communist influence. Moreover, nationalist leaders retained significant control over unions. मतलब इसने बताया कि ये जो रेडिकल तरीका है, रिवॉल्यूशनरी तरीका है, ये तरीका बहुत सक्सेसफुल रहता नहीं है कभी कभी। सॉरी, वेट फॉर 1 मिनट। हेलो, होप यू आर गेटिंग माई वॉइस, ओके। तो जो रेडिकल मूवमेंट है, देखो पॉलिटिक्स जो थी नेशनल मूवमेंट की, उसमें सक्सेसफुल क्या रहा, तो ये बात हमने लिमिटेशन में बनाया कि नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे रिटेन सिग्निफिकेंट कंट्रोल। कम्युनिस्ट लीडर्स को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, ठीक है, और ये बहुत सक्सेस, मतलब ऐसा नहीं कह सकते इट वाज फेल्ड, बट इट वाज हैविंग सीरियस लिमिटेशंस। नाउ इन कंक्लूजन वी विल राइट, व्हाइल द कम्युनिस्ट मूवमेंट infused militancy and revolutionary content into trade unionism, its impact was partial, यहां लिखा ना, and constrained by the structural and political factors. तो we will talk about the limitations, ठीक है ना। यहाँ पे ये जरूर हमने बताया कि यहाँ पे इकोनॉमिक बार्गेनिंग थी, तो यहाँ पॉलिटिकल रेडिकलिज्म है, ये मार्क्सिस्ट ओपिनियन है, बट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और मूवमेंट के उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, जो इम्पैक्ट है ये पार्शियल है। सो दिस वी विल राइट। इफ यू वांट टू राइट द आंसर इन point wise format, so you can write like this. In introduction you will write, 1920s marked a decisive phase in Indian trade union movement with the growing influence of communist ideology. यानी अब इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। Initially led by moderate nationalists, bodies like AITUC focused mainly on economic demands. Impact of Russian Revolution पता ही आपको, रोल ऑफ कम्युनिस्ट ग्रुप्स बता दिया आपने, बता चुका हूँ, ठीक है। इंस्पायर्ड इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, इंस्पायर्ड कम्युनिस्ट ग्रुप्स इन इंडिया, प्रोवाइडेड आइडियोलॉजिकल बेसिस फॉर लेबर एक्टिविज्म। रोल ऑफ कम्युनिस्ट ग्रुप्स विल राइट, इंट्रोड्यूस क्लास स्ट्रगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक डिमांड से पॉलिटिकल कंसिस्टेंस की तरफ शिफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यू मस्ट नोट डाउन दिस, हाईलाइट कर लेना। इनकरेज स्ट्राइक्स, कलेक्टिव एक्शन है, बता दे। नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इकोनॉमिक बार्गेनिंग टू पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज स्टेटमेंट में यही स्कूल ऑफ थॉट से ये स्टेटमेंट बनाया गया। नाउ लिमिटेशंस हम जरूर लिखेंगे। लिमिटेशंस क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस, नैरो इंडस्ट्रियल बेस, अर्बन सेंट्रिक, स्टेट रिप्रेशन एंड अरेस्ट, कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ नेशनल लीडरशिप। कंक्लूजन क्या है, वेल दिस वाइल कम्युनिज्म रेडिकलाइज्ड ट्रेड यूनियनिज्म, इट्स इम्पैक्ट रिमेन पार्शियल ड्यू टू स्ट्रक्चरल लिमिट्स एंड पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट। सो दिस विल बी द बैलेंस्ड कंक्लूजन। नाउ द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिस क्वेश्चन अगेन द थीम्स आर रिपीटेड, और ज्यादा नहीं, 2020 के बाद 2021 में आते आते कितने थीम्स रिपीट हो गए आप खुद ही देख लो, कितना ज्यादा रिपीटेशन है क्वेश्चंस में। नाउ इन दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, और फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी मींस दिस टाइम पीरियड, द एटमॉस्फेयर 1901 to 1910, द एटमॉस्फेयर वाज राइप फॉर द राइज ऑफ
रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स टू फिल द वैकेंट स्पेस इन पॉलिटिकल मैप ऑफ द कंट्री। तो यहां पे दो तीन चीजें हैं। पहला कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी क्या है, पहले तो आपको यू मस्ट नो अबाउट द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। दूसरी बात यहां कह रहा है वैकेंट स्पेस इन पॉलिटिकल मैप ऑफ द कंट्री, इसका मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड 1901 टू 1910 व्हाट इज द वैकेंट स्पेस, ये किस वैकेंट स्पेस की बात कर रहा है, दिस वी विल डिस्कस, है ना। और इसी वैकेंट स्पेस में क्या कहा जा रहा है, द एटमॉस्फेयर वाज राइप और द सर्कमस्टेंसेस वेर फेवरेबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स। तो कैसे एटमॉस्फेयर राइप था या सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल थे फॉर द इमर्जेंस ऑफ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स। तो देखो, you know about the first phase of revolutionary activities in India. So this question is related to that. Background development of the first phase of revolutionary activities, ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है। And you don't have to write a lot of facts here, but you have to write the opinion. But the background, what happened, background information जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप ये refined level होता है, आप ऐसा समझो कि फैक्ट्स, इंफॉर्मेशंस, बेसिक आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स ये जानना है, फाउंडेशन है। इसके ऊपर जब आप ओपिनियन और क्रिटिकल आंसर तभी लिख पाते हो व्हेन यू हैव अ गुड आइडिया ऑफ ऑल दिस। तो पॉलिटिकल क्राइसिस इन 20th सेंचुरी फर्स्ट डिकेड, क्या है वो पॉलिटिकल क्राइसिस 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड में 1901 से 1910 के बीच में है क्राइसिस, दिख रहा है आपको। 1905 में क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। रिएक्शन में क्या है, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट, दैट इज व्हाट, स्वदेशी मूवमेंट। पढ़ा है आपने। स्वदेशी मूवमेंट में क्या होता है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, रिफ्ट, वो एक रिफ्ट, हालांकि ये रिफ्ट पहले से ही है 1885 से 1905 विच वॉज द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वी हैव सीन कि अचीवमेंट्स वेर फ्यू, है ना, और कांग्रेस की जो मॉडरेट डोमिनेंस था, इनके जो मेथड्स थे और अचीवमेंट्स बहुत कम थी, इस बात को लेकर डिससेटिस्फेक्शन था उस ग्रुप में। तो उस डिससेटिस्फेक्शन को लोग सामने लाने लगे। उन्होंने कहा कि भाई डिमांड्स थोड़े रेडिकल होने चाहिए, स्वराज की मांग करनी चाहिए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। एंड दिस क्रिएटेड द डिफरेंसेस ड्यूरिंग दिस एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट, है ना। जब स्वदेशी मूवमेंट पढ़ोगे तो वो चीज़ पढ़ोगे कि स्वदेशी मूवमेंट का एक्सटेंशन बंगाल से बाहर भी होना चाहिए, ठीक है। जो टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं उन टेक्निक्स के यूज़ को लेके तमाम ऐसे मुद्दे आए जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। लास्टली वी सी व्हाट कि सूरत स्प्लिट होता है, एंड आफ्टर सूरत स्प्लिट हम क्या देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट आर आउट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जैसे ही सूरत स्प्लिट होता है, ब्रिटिश अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज करते हैं। ब्रिटिश विल यूज देयर पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। कैरेट फॉर द मॉडरेट्स, मॉडरेट्स को अपीज करने की कोशिश करेंगे। दे विल से कि वेरी सून वी आर गोइंग टू इनिशिएट अ रिफॉर्म एंड दैट विल एड्रेस ऑल योर पेंडिंग पॉलिटिकल डिमांड्स। बहुत जल्द हम एक रिफॉर्म लाएंगे जिसमें आपकी जितनी पेंडिंग पॉलिटिकल डिमांड है उसको हम एड्रेस कर लेंगे। तो ये कहते हैं। दूसरी बात, जैसे वो मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स आने के बाद मॉडरेट्स वेर डिसइल्यूजन्ड, उनको कहा यार ये तो धोखा कर दिया हमारे साथ, झूठा वादा किया। और ऑन द अदर साइड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वेर अरेस्टेड, एंड वी नो दैट यूथ्स वेर द ग्रेट फॉलोअर्स ऑफ दीज एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। तो यूथ तो दे वर मिसगाइडेड, यूथ सड़कों पे आए। ब्रिटिश ने क्या किया, दे यूज्ड ब्रूटल सप्रेशन, रिप्रेशन, बर्बरतापूर्ण दमन की नीति। एंड यूथ रिएक्टेड, दे रिएक्टेड। तो यूथ जब रिएक्ट करेगा तो नया खून है, क्या होगा, ठीक है, वायलेंट एक्टिविटीज तो होंगी ही होंगी, ठीक है। तो वायलेंस हुआ। अच्छा, जब वो सप्रेशन हो रहा है, ब्रूटल सप्रेशन हो रहा है, जहाँ पे यूथ को गाइड करने वाले लीडर्स भी नहीं है, बहुत सारे लीडर्स, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, वो सिचुएशन ऐसा था, वही वो पॉलिटिकल वैक्यूम था जिसने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के राइज के लिए एक एडिक्वेट सर्कमस्टेंसेस पैदा कर दिए। यही वो एटमॉस्फेयर है। कंडीशंस ऑफ ब्रूटल सप्रेशन और रिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ऑफ द यूथ, राइजिंग नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस की अब क्या होगा, तमाम ऐसी चीजें। तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इज अ रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रूटल सप्रेशन डन बाय ब्रिटिश अथॉरिटीज। It is a response of the political frustration of the youth. Their leaders were arrested. ये बात आपको समझना है। नेशनलिस्ट लीडर्स बिपान चंद्रा का ओपिनियन यही है। तो ये जो स्टेटमेंट पूछा, ये नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिपान चंद्रा का ये ओपिनियन है, ठीक है, कि 20th सेंचुरी में
जो ये वैकेंट स्पेस है ये इसलिए बना बिकॉज जो मैंने बताया कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वेर पुट टू जेल, now the youth were misguided, the political frustration, and at the same time British colonial authorities were brutally suppressing, they were using use of force to suppress the revolutionary activities, and as a result, as a reaction of this, revolutionary activities in India were promoted. ये बात तो ये क्वेश्चन ही जुड़ा हुआ है नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री से। बट मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं कि ये जो रेडिकलिज्म जो आपको दिखता है फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में, इसमें भी जो लीड करने वाले लोग हैं ये एक तरह का बोर्जुआ रेडिकलिज्म है, इसका मास बेस बहुत ही लिमिटेड है। सबल्टन कहते हैं कि यूथ का एंगर है, लोकलाइज्ड रेसिस्टेंस है, तो ऑब्वियस है सबल्टन वॉइसेस है, तो इस तरह की बातें आती है। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आपको बैकग्राउंड पता है ना, वी कैन इजिली राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेशनलिस्ट थॉट से जुड़ा हुआ है। सो 150 वर्ड लिखना है इसको भी हमें, तो राइट फर्स्ट पैराग्राफ देखो, द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, चाहो तो इन ब्रैकेट यू कैन राइट हियर 1901 to 1910 created conditions that were conducive to the emergence of revolutionary nationalism in India. कैसे? The failure of the moderate politics. Failure of the moderate politics बता ही दिया आपको, 1885 to 1905, 20 years, achievements were few. इसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या ले लिया? पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन, ठीक है। मॉडरेट पॉलिटिक्स में क्या था? मॉडरेट पॉलिटिक्स रिलाइंग ऑन पिटिशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, तो इससे एक वाइड स्प्रेड डिसइल्यूजनमेंट था अमॉन्ग एजुकेटेड यूथ। द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द सब्सिक्वेंट कॉलोनियल रिप्रेशन फर्दर इंटेंसिफाइड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। लोगों का नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स तो इंटेंसिफाई और कॉन्सोलिडेट होना शुरू हो गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ही, और पार्टीशन ऑफ बंगाल के अलावा भी और भी दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से दैट यू माइट हैव रेड इन योर क्लासेस। सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं। Simultaneously, the temporary decline of extremist leadership created political vacuum. वो political vacuum क्या है? Revolutionary groups sought to fill. मैंने बताया ना, temporary decline of extremist leadership. सूरत split की यहाँ बात की जा रही है, right? सूरत split, moderate extremist split, British policy of carrot and stick, moderate appeased by promising that soon we are going to introduce reforms in the form of parliamentary reforms. Extremist leaders arrested and brutal suppression of followers of extremist leaders, that is youth. तो we are talking about this. अब इसमें बता दिया हमने कुछ revolutionary organizations का भी नाम, कि organizations like अनुशीलन समिति and अभिनव भारत adopted methods of armed resistance targeting colonial officials. Historian perspective को भी हम लेके आए, nationalist thought, बिपान चंद्रा notes this phase reflected political frustration rather than a mass movement. This is the point. Sumit Sarkar argues these groups had limited social base, largely confined urban educated middle class, and lacked mass support. What is the conclusion? Conclusion is while the atmosphere was indeed ripe for revolutionary activity, its impact remained limited. हमेशा बताना, देखो कम्युनिस्ट हो या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो, इसका इम्पैक्ट लिमिटेड था। ये एक कॉमन स्टैंड है जो आप हर आंसर में लोगे। सर्विंग मोर एज अ ट्रांजिशनल फेज इन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जैसे भगत सिंह, उसका भी इम्पैक्ट लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? उसके भी रीजंस है। However, that is very significant. HRA, HSRA very significant. तो एक अप्रोच जो है, एक फॉर्मेट है, वो धीरे धीरे आपके दिमाग में आ जाएगा आंसर को डिस्कस करते हुए। इफ यू राइट द आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन इन बुलेट फॉर्मेट, यू कैन राइट लाइक दिस। इन इंट्रोडक्शन पार्ट यू विल राइट दैट द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century witnessed conditions that were favorable for revolutionary nationalism due to failure of moderate politics, partition of Bengal, intensified anti-colonial sentiments, decline of extremist leadership. सूरत स्प्लिट यहाँ पे जरूर जिक्र कर दो आंसर में, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ये वाला थोड़ा सा लिख देना, 2-4 ऐड कर देना, कुछ वर्ड्स आपके बढ़ जाएंगे। डिक्लाइन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, रिप्रेशन वीकेंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, इट क्रिएटेड पॉलिटिकल वैक्यूम फॉर न्यू फॉर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस। दूसरा पॉइंट, राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, सीक्रेट सोसाइटीज फर्स्ट फेज में अनुशीलन समिति और अभिनव भारत, adoption of armed struggle, cult of revolver and bomb, political assassination of unpopular officials. Nature of movement है ना, clandestine, conspirational, regionally confined, focus on individual heroism over mass mobilization. आपको पता है cult of bomb and revolver, assassination of unpopular leaders, individual heroic action, यही तो था मेथड। हिस्टोग्राफी में बिपान चंद्रा लिखते हैं रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन। लिमिटेशन सुमित सरकार बताते हैं कि नैरो urban middle class space, lack of mass participation, and finally the conclusion is revolutionary nationalism, though significant, it remained limited and
transitional in India's nationalist movement. So this is the question number 1E. So now we have completed the discussions of 5 questions, question number 1 A, B, C, D, E, that we had to discuss in part 1. तो देखो part A of video, this is part A of 2021 discussion. Now we have completely discussed these 5 questions where we have discussed theme, we have discussed answer, 2 models of answer. Now in part B of the video, I will discuss question number 2, A, B, C. Part C of the video, we will discuss question number 3, A, B, C. And part D of the video will discuss question number 4, A, B, C. और आपको क्या करना है? Since I am discussing here, I have discussed 5-10 मार्क का क्वेश्चन, तो आप इसके आंसर लिख जाओ डिस्कशन देखने के बाद. फिर अगली वीडियो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया, आंसर लिख जाओ. फिर 3 क्वेश्चन आंसर लिख जाओ. तो 3 क्वेश्चंस, 1 वीडियो यू आर वाचिंग एंड राइटिंग 3 आंसर्स, 1 वीडियो यू आर वाचिंग एंड राइटिंग 3 आंसर्स. ठीक है. एंड दीज वीडियोज विल बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब. ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन के लिए है, तो आप आराम से 2 बार 4 बार 10 बार देख सकते हो. तो इस तरह की क्लासेस में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, विच आई हैव पर्सनली मेंट, है ना, बिकॉज in many colleges and universities also, the old school professors, they used to dictate their notes in the classes. तो जब हम 100% डिक्टेशन मोड में चले जाते हैं या 80% डिक्टेशन मोड में चले जाते हैं, तो हमारे दिमाग में सवाल बनने बंद हो जाते हैं. हमें ये लगता है कि हमने जो लिखा है इसी को हमें क्या करना है, रट्टा मार के जाना है, प्रेजेंट करना है. टू सम एक्सटेंट दिस मेथड इज गुड फॉर द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस. वहाँ भी ये अच्छा नहीं है, बिकॉज यूनिवर्सिटी और कॉलेज ही वो जगह है जहाँ पे कि हमारे विचार बनने चाहिए, हमारे अंदर सवालों को पूछने की क्षमता विकसित होनी चाहिए. तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है. ठीक है. हमें बहुत ओपन डिस्कशन डिस्कोर्स का माहौल रखना चाहिए. तो जब आप किसी टॉपिक पे बात करते हो, डिस्कस करते हो, आप इस बात को महसूस करोगे. जब आप मेरी वीडियो देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में, आपके दिमाग में रह जाएंगी. शायद वो PYQ कहीं से मॉडल आंसर अगर आप परचेज करते, कहीं मार्केट से नोट्स लेके आते, रीड करते, तो वो चीज़ें उतने बेहतर तरीके से आपको नहीं याद रह पाती जितना कि इस डिस्कशन के बाद आपको याद रह पाएगा. तो यू विल फील द डिफरेंस, है ना. अगर आप वीडियो देखोगे, 1-2-3 वीडियो देखोगे, तो आपको वो चीज़ें खुद नजर आएंगी कि कैसे हम सीखते हैं, सीखने का प्रोसेस क्या होता है. यू विल लर्न बाय योरसेल्फ. ठीक है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो कि इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियोज़ देना, है ना. 2 घंटे में पूरे साल का क्वेश्चन डिस्कस करने की बजाय मैं एक लेक्चर्स पे 1-1.5 घंटे का समय दे रहा हूँ. सो आई नो दैट दिस विल हेल्प द स्टूडेंट्स अ लॉट इन देयर एग्जाम प्रिपरेशन. और मेरा मोटिव ही यही है कि आप जो भी समय दो, कम से कम आप कुछ बेहतर सीखो, जानो. विषय को पढ़ना कहीं भी, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या UPSC एग्जाम की तैयारी में बहुत मैकेनिकल नहीं होना चाहिए. वी शुड एक्वायर द नॉलेज इन दिस प्रोसेस टू. ठीक है. तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आप कुछ सीख पाए होंगे. मिलते हैं अगली क्लास में, पार्ट B सीरीज में. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.